Hello everyone, this is Bakhtawer Nawal, co-head at IEEE signing in as your host today. I, on the behalf of IEEE Best Chapter UET Texala, welcome you all to this very amazing webinar on the ultimate guide to FYP. I'm pretty sure every engineer to be, irrespective of his degree year, would be having many ideas as well as queries regarding his final year project. And for final year students, this topic occupies another level of significance for them. Well, recognizing the predominant needs of students, this webinar has been arranged for you all and will be solving all of your queries regarding FYP. It will not only be helpful to final year students, but will also be beneficial if you are in your second or third year of BS degree. For this purpose, we are having one of the preeminent alumni of UET Texila. Mr. Ali Hassan is an acclaimed entrepreneur, public speaker, and social media activist. He was graduated from UET Texila in 2020 as an electrical engineer and is currently a faculty member at NUST. He has inspired many students to his ultimate success and has been counseling several pupils through his YouTube channel. Apart from that, he is also a founder of TOUET. Thank you so much, sir, for your time. Before I hand over the mic, I would like to orient you very briefly on certain essential housekeeping. Kindly keep yourself muted during the webinar. This will be a 40 to 45 minute session and last 20 minutes are reserved for your queries. If you have any question, you can type in the chat box. Thank you so much, Bakhtawar, for the nice introduction and especially for giving me the opportunity to speak from this platform. ओके अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि इंट्रोडक्शन शुरू में आपने सुन ही लिया होगा, आई एम अली हसन। Currently I am a lab engineer in SMM in Lust, where except my duties as a lab engineer, I am also a FYP coordinator. Okay, I was ex-president of SIPE, which is a technical society in UT Texas, and a founder of TOUT, which is a platform where you can learn and get entertained as well. And I have been graduated from UT Texas. So let's move towards the topic, that is how to FYP. Yeah, what is FYP? So आपने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे अभी तक, अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो भी, अगर आपने सिक्स सेमेस्टर में है, मतलब लाइक आप थर्ड ईयर में हो गए या सेकेंड ईयर में हो गए, लाइक फर्स्ट ईयर से भी आपके प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके होते हैं। वो प्रोजेक्ट्स होते हैं लाइक 1 क्रेडिट आवर्स का भी 10%। अब क्रेडिट आवर का सिस्टम आप सबको पता होगा कि क्रेडिट आवर सिस्टम क्या होता है, कि उस एक क्रेडिट आवर की लैब होती है, उसका भी लाइक 10 to 20% का एक प्रोजेक्ट का हिस्सा होता है जो आपने टेक्निकल कोर्स में प्रोजेक्ट बनाना होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं चलो वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बन गया तो भी ठीक है, नहीं बना तो भी ठीक है। ठीक है, मतलब आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ऑब्वियसली आप फेल नहीं होंगे, आप करते जाएं इसी तरह ही। तो इन द लास्ट ईयर आपको एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मिलता है। ठीक है, जिसकी वजह से लाइक दिस इज़ अ शॉर्ट फॉर्म विच इज़ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। वो आपने लास्ट सेमेस्टर, लास्ट ईयर, मतलब लाइक 7th और 8th सेमेस्टर में आपने कंप्लीट करना होता है। अगर आप उसको पास ना करें तो ऑब्वियसली यू वांट ग्रेजुएट। ठीक है, तो इसको पास करना बहुत ज़रूरी होता है आपको, अदरवाइज़ आपको आपकी डिग्री नहीं मिलेगी। अच्छा, इसको दो बेसिकली नाम से कॉल किया जाता है, एक FYP और एक SDP। ठीक है, SDP अगर आपसे कोई बोले तो ऑब्वियसली इसका मतलब होगा सीनियर डिज़ाइन प्रोजेक्ट, और ये सेम चीज़ें हैं। ठीक है, FYP विच इज़ अ प्रोजेक्ट दैट इज़ गिवन टू यू पीपल इन द लास्ट ईयर ऑफ योर इंजीनियरिंग। ठीक है, अच्छा, और इसे सीनियर डिज़ाइन प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स की तरफ नज़र दौड़ाएं तो आपको इसके अंदर क्या करना होता है। अच्छा, पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जिस तरह भी आपको बताई भी है कि टोटल ओवरऑल ये 6 क्रेडिट आवर्स लेता है। ठीक है, आपका मैक्सिमम कोई भी अगर कोई सब्जेक्ट आपने क्लास अपनी ड्यूरिंग डिग्री में पढ़ा होगा तो वो 4 क्रेडिट आवर्स का होता है, लेकिन ये अकेला स्टैंड अलोन FYP इज़ अ 6 क्रेडिट आवर्स का एक सब्जेक्ट कह लें, या लाइक एक जो भी अ थिंग विच कैरीज अ मार्क्स ऑफ 6 क्रेडिट आवर्स सब्जेक्ट, जितने 6 क्रेडिट और के सब्जेक्ट आपका होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें होता क्या है, आप ऑब्वियसली सबसे पहले आप अभी जिस तरह आपका अभी जो पीरियड चल रहा है इसमें आपको एक प्रपोजल छोटा सा बना के देना होता है कि जी मैं इस पे काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आपने सुपरवाइजर सेलेक्ट करना होता है।
ठीक है। उसके बाद अगर आपका सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद आपका 7 सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। मतलब 7 सेमेस्टर के स्टार्ट तक आपका वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए। मतलब आपने प्रोजेक्ट अपना प्रपोजल दे देना चाहिए अपने सुपरवाइजर को, और आपने सुपरवाइजर चूज कर लेना चाहिए अभी तक। 7 सेमेस्टर से पहले पहले अभी आपके वही डेज चल रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद अब होता ये चीज़ है कि या तो आप खुद प्रपोजल देते हो, या कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसके अंदर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स आए हुए होते हैं ऑलरेडी सुपरवाइजर्स के पास, ठीक है। तो वो खुद स्टूडेंट से कांटेक्ट करते हैं, या वो स्टूडेंट से कांटेक्ट करते हैं, या फिर आपको वो लिस्ट शो कर देते हैं कि मेरे पास ये मेरे पास ये प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। अब आप में से जो इस फील्ड में या इस तरफ काम करना चाहता है वो मुझे अपना प्रपोजल अच्छा सा बना के भेज दे, अपने जीपीए भी भेज दे, तो मैं फिर देखूंगा कि मैं उसके साथ अपना प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ या नहीं। तो देयर आर टू वेज कि क्या कि आपके सुपरवाइजर के पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट होते हैं, वो आपको देते हैं, ठीक है। तो और सेकंड चीज़ ये है कि आप खुद से अपनी पसंद का एक टॉपिक सेलेक्ट करते हो, आप अपने सुपरवाइजर को भेजते हो कि सुपरवाइजर को वो टॉपिक पसंद आए तो वो आपको रख लेता है, ऑब्वियसली वो आपको एक्नॉलेज कर लेता है और कहता है कि आई विल सुपरवाइज यू फॉर द लास्ट 2 सेमेस्टर्स। अदरवाइज वो कहता है कि नहीं, ठीक है, आप किसी और से रब्ता करें, तो ऑब्वियसली खैर सबको कोई ना कोई मिल जाता है। अच्छा, अब ना 7 सेमेस्टर में अब यहाँ से जो आगे स्टोरी शुरू हो रही है ना, ये कि आपने कोई ना कोई टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद 7 सेमेस्टर में आपको ना दो चीज़ें होती हैं जो 3 क्रेडिट आवर्स पे बेस कर रही होती हैं, ठीक है। 7 सेमेस्टर में आपने एक प्रपोजल रिपोर्ट या एक प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है। प्रपोजल या प्रोग्रेस रिपोर्ट इसे बोलते हैं। ऑब्वियसली एक तो 1 पेजर प्रपोजल होता है ना जो आप सुपरवाइजर को स्टार्ट में देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक कंप्लीट प्रपोजल होता है जिसके अंदर कंटेनिंग ऑल द सर्किट डायग्राम्स जो आप प्रपोज करेंगे कि मैं इस तरह अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से कंपोनेंट्स अपने लूंगा, मैं इस टाइम स्पैन में ये कंपोनेंट्स कंप्लीट कर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है। मतलब इस तरह की एक प्रपोजल रिपोर्ट होती है, वो आप सबमिट कराते हैं, और साथ आपकी मल्टीपल प्रोग्रेस प्रेजेंटेशंस होती हैं, ठीक है। आप ये समझ लें कि आपकी 2 प्रोग्रेस प्रेजेंटेशंस होंगी, प्लस आपकी एक प्रपोजल रिपोर्ट एंड पे सबमिट होगी, एंड जस्ट दीज 3 थिंग्स विल काउंट योर 3 क्रेडिट आवर्स, ठीक है। इसका रिजल्ट आपका 3 क्रेडिट आवर्स पे मुश्तमिल होगा, और ये आपने 7 सेमेस्टर में करना होगा, ठीक है। तो 7 सेमेस्टर में आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, एक तो मतलब चाहिए जो सबमिट चीज़ करवानी है वो आपने प्रपोजल रिपोर्ट ही है, इसके साथ साथ आपकी प्रपोजल या प्रोग्रेस प्रेजेंटेशंस होती हैं वो आपसे टू मतलब एक सेमेस्टर में 2 दफ़ा डिपेंडिंग अपॉन द सुपरवाइजर हो सकता है 3 दफ़ा हो जाए, या अगर सुपरवाइजर आपका कह रहा है कि चलो हाँ उनको पता है, आइडिया है कि काम आप ठीक कर रहे हैं, तो हो सकता है एंड पे ही एक प्रेजेंटेशन आपसे ले लें। तो ये डिपेंड्स अपॉन सुपरवाइजर। उसके बाद आ जाता है 8 सेमेस्टर। अभी ये जिस जनरल में आपको हर चीज़ का सैंपल भी दिखाऊंगा बाद में, और मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें आपने मार्क्स किस तरह लेने हैं। अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि होता क्या क्या है। 7th के बाद आ जाता है आपके पास 8th सेमेस्टर। अब 8th सेमेस्टर में आपको ऑब्वियसली एंड पे सबमिट कराना होता है एक फाइनल थीसिस, प्लस एंड पे होती है आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन होती है। देन आपने हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस तरह का प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया, आपने वो हार्डवेयर सबमिट कराना होता है। साथ उसके एक पोस्टर होता है जो कि लास्ट 2 ईयर से नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि नहीं जा रहा, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी चीज़ें कम हुई हुई हैं, फिजिकल इंटरेक्शन है नहीं, क्लास में आ नहीं रहे लोग, यूनिवर्सिटी में नहीं आ रहे, तो ऑब्वियसली ये प्रेजेंटेशन पोस्टर प्रेजेंटेशन वाला काम थोड़ा रुका है। लेकिन यूईटी टेक्सला में आई गेस फिर भी हुआ है कुछ हद तक कि लोग पोस्टर बना के लाते हैं अपने प्रोजेक्ट का, और फिर वो पोस्टर प्रेजेंटेशन देते हैं। एंड लास्ट थिंग, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप कर लें तो बहुत ज़रूरी है, जो वीडियो वाली चीज़ है। आपने अपने प्रोजेक्ट की छोटी सी 2 मिनट वीडियो बनानी होती है जिसके अंदर आप सारा डिटेल बताएंगे, या आप खुद से बताएंगे वॉइस ओवर में, या आप कैप्शंस के थ्रू सबटाइटल्स के थ्रू उसके बताएंगे। और साथ यूईटी टेक्सला में स्पेसिफिकली आपसे वो सीडी भी मांगते हैं, जिस सीडी के अंदर आपका थीसिस भी होना चाहिए, और साथ वो जो आप वीडियो बनाएंगे वो होना चाहिए, और थीसिस ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। तो ये और साथ थीसिस आपका सबमिट होगा, इसके बाद आपकी क्लियरेंस होगी, एंड देन आपको रिपोर्ट मिलेगी। खैर नेक्स्ट चलते हैं, आई गेस मैंने टाइम ले लिया। अब मैं इसके सैंपल्स आपकी तरफ ना दिखाता हूँ आपको। अब आपने ना, मैं सबसे पहले आपको प्रपोजल रिपोर्ट का जो आपने फाइनल सबमिट करें, दिस इज अ रिपोर्ट जो आपने 7th सेमेस्टर के बाद सबमिट करानी है, नॉट अ 1 पेजर रिपोर्ट जो आप स्टार्ट में प्रपोजल देते हैं सुपरवाइजर को। वो ऑब्वियसली 1-2 पेजेस का होता है जिसमें छोटा सा आइडिया लिखा होता है कि हम ये करना चाहते हैं, वो नहीं, ठीक है। अब ये वो प्रपोजल है जो आपने 7th सेमेस्टर में सबमिट करवाना है। तो मैं अभी इसको क्लिक करता हूँ, तो फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है। अच्छा, मीनवाइल अगर कोई चाहता है कि आपका कोई क्वेश्चन है, ऑब्वियसली माइक स्टैंड पे ऑन किए जाएंगे, तो अगर कोई किसी की कोई क्यूरी दरमियान में है तो वो कमेंट भी कर सकता है नीचे चैट में, तो मैं उसका दरमियान में भी आंसर कर लूँगा।
ओके, तो ये हमारे पास है जी। ये मेरा अपनी, मैं आपको ना मुख्तलिफ अपना भी प्रोजेक्ट दिखाता रहूँगा, साथ साथ बाकी भी प्रोजेक्ट दिखाता रहूँगा। ठीक है, लाइक मेरा जो बनाया हुआ है इट्स नॉट आइडियल, लाइक परफेक्ट, इससे भी ज़्यादा लोगों के एग्जिस्ट करते हैं। तो ये मेरा टॉपिक था, लेट्स से डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट हाइड्रो पावर सिस्टम। ये मेरा वो है जो मैंने अभी आपको कहा है कि BS थीसिस प्रपोजल है, जो मेरा 7th के बाद 7th का जिसका मेरा GPA लगना है। ठीक है, अब आपने इसकी ना कॉन्टेक्स्ट, सिर्फ आपने कंटेंट देखने ताकि आपको पता चल जाए कि तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी ऑब्वियसली, जो होती है कि आपने किस चीज़ पे काम करना चाहते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, लिटरेचर रिव्यू, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है ऑब्वियसली। लिटरेचर रिव्यू जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में सही से नहीं लिख सकेंगे, क्योंकि आपको बैकग्राउंड ही नहीं पता हो। देन आ जाती है आपकी मेथडोलॉजी, कि आप क्या करना चाहते हैं। दिस इज अ प्रपोज मेथडोलॉजी, कि आपका 8th सेमेस्टर के बाद इस तरह का प्रोजेक्ट बनेगा। देन यूटिलाइजेशन ऑफ STP रिजल्ट्स, आपके प्रोजेक्ट रिजल्ट कैसे हो जाएंगे। फिर आपने वर्क स्केड्यूल प्लान बताना होता है, इसके अंदर एथिकल इश्यूज बताने होते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसका माशरे पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, या लाइक किसी किस्म का भी मैं आपको शो करवा दूँ। देन बजट बजट डिस्क्रिप्शन आपने बतानी है ऑब्वियसली, कि बजट कितना लगेगा। देन रिफ्रेशिंग अंडर ट्रैकिंग, रेफरेंसेज अंडर ट्रैकिंग। ठीक है, तो बस मैं आपको जल्दी से, और देखें ये कोई बड़ी रिपोर्ट नहीं है, दिस इज लाइक हार्डली, मुझे आपको बताता हूँ ये कितने की है रिपोर्ट, अप्रोक्सीमेटली 25 पेजेस। ठीक है, तो इस पे आपका इन्हसार है मार्क्स का। अच्छा, जो मैं आपको एक चीज़ बता रहा था यहाँ पे कि एथिकल, ये देखें कि गाइड बुक एथिकल इश्यूज इज लाइक दिस, कि गाइड बुक विल बी प्रोवाइडेड फॉर दोज पर, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम भी ये पूछ रहे होते हैं कि भाई मुझे बताएं एथिकल इश्यूज में क्या लिखना है। बाकी सारी चीज़ें तो लाइक ऑब्वियस है ना कि उसमें क्या लिखना होता है। ठीक है, तो दीज आर लाइक एथिकल इश्यूज, के गाइड बुक विल बी प्रोवाइडेड, हम अपने प्रोजेक्ट के साथ एक गाइड बुक प्रोवाइड करेंगे, और हम ये चेक करेंगे कि इसकी टेस्टिंग डेंजरस ना हो, डाटा कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। हो सकता है कुछ ऐसे डाटा होना जो आप, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इंडिविजुअल डाटा पे होते हैं, जिस तरह अपना CNI से इंटर करें तो हम आपका लाइक आपके नंबर पे कितनी सिम्स हैं ये बता देंगे, लाइक ये भी एक प्रोजेक्ट हो सकता है सॉफ्टवेयर का। सही है, तो हम आपके डाटा को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। दिस आर लाइक एथिकल इश्यूज। ठीक है, तो आई गेस सो कि इसमें आपको कोई मसला नहीं है, मैंने सिर्फ आपको बताना था कि इस तरह की चीज़ होती है। देन इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, जो कि है हमारे पास प्रपोजल प्रेजेंटेशन। ठीक है, मैं सिर्फ जल्दी से वो अब आपको सिर्फ दिखाऊंगा, उसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो ये आपकी देखें प्रपोजल प्रेजेंटेशन बन जाएगी। ठीक है, उसी तरह आप जब प्रपोजल, ठीक है, अब देखें मैंने प्रॉपर 7th के बाद मुझे पता चल गया था कि मैंने क्या क्या कंपोनेंट यूज़ करने हैं। ठीक है, मेरा क्या स्कीमेटिक होगी, मेरा प्रोजेक्ट किस तरह फ्लो करेगा। देन हम टर्बाइंस कौन सी, मतलब लाइक कंपोनेंट्स कौन से यूज़ करेंगे। देन ठीक है, ये सारी चीज़ें इस प्रपोज, और फिर हमारे सेंसर्स कौन कौन से यूज़ होंगे, और ये किस पे है। ठीक है, मैं सिर्फ एज अ प्रपोजल प्रोग्रेस दे रहा हूँ, लेकिन अब मैं श्योर हूँगा कि मैंने ये चीज़ें यूज़ करनी ही करनी है। ठीक है, कि 7th सेमेस्टर के बाद आप श्योर होने चाहिए। देन FIP कंप्लीशन रिपोर्ट आ जाएगी, और देन ये, ठीक है, तो कंक्लूजन ये। ठीक है, तो दिस इज लाइक प्रपोजल। देन फाइनल थीसिस होगा। अब आपने फाइनल थीसिस के ना वो देखने हैं सिर्फ कंपोनेंट्स के, कंपोनेंट्स कैसे हैं। ओके, तो अब ना ये अगेन एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है, मैंने अपना ही नहीं दिखाया क्योंकि लाइक आपको आइडिया हो। एक और प्रोजेक्ट है स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम विद इम्प्रूव्ड मॉनिटरिंग कंट्रोल। ठीक है, अब मैं इसकी तरफ ना, इसके कंपोनेंट्स की तरफ सबसे पहले चलता हूँ। देखिए, इसका थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज होती है, ये फॉर्मेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा यूनिवर्सिटी के थ्रू, और ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी आई गेस नहीं, लाइक ऑब्वियसली डिफरेंट होता है। अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट्स की तरफ आते हैं। तो देखें, प्रॉब्लम फर्स्ट चैप्टर वाइज होता है अभी, क्योंकि कंप्लीट बुक होती है अराउंड 60 to 70 और मे बी 100 पेजेस की। ठीक है, तो चैप्टर 1 में आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मोटिवेशन, प्रोजेक्ट स्कोप क्या है, एम्स है। देन चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 ये आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है, कि आपने प्रोजेक्ट किस में कर रहे हैं। अब ये क्योंकि प्रोजेक्ट था IoT बेस्ड, तो इन्होंने चैप्टर 2 में IoTs और आर्डिनोज को डिफाइन कर लिया सबसे पहले। फिर चैप्टर 3 में उन्होंने स्मार्ट सिस्टम्स को डिफाइन किया है, और इस तरह स्मार्ट अपनी मतलब डोमेन के हिसाब से उन्होंने चैप्टर के कंटेंट्स डाल दिए इसमें। देन फोर्थ चैप्टर आपका क्या होगा, इस फोर्थ चैप्टर के अंदर आपने हार्डवेयर लिखना है और उसके कंपोनेंट लिखने के कौन कौन से यूज होंगे।
जिस तरह ये आर्डिनो इज़ नॉट अ लाइक बेस्ट चॉइस फॉर द FIP. You should go for Raspberry या PIDs एटलीस्ट. आर्डिनो का कोई खास स्कोप नहीं है आगे. खैर, तो ये आपके पास देखें कंपोनेंट्स आगे हार्डवेयर, और फिर फिफ्थ चैप्टर आपका होगा रिजल्ट्स का. वोल्टेज वर्सेस लोड, करंट ऑफ द लोड, वोल्टेज ऑफ द लोड, मतलब इसमें आपने रिजल्ट बताना है. और फिर एंड पे कंक्लूजन बताना है. सिक्स चैप्टर में कंक्लूजन होता है, और फिर रेफरेंसेस, और फिर एब्रीविएशन, और फिर कोड एंड पे लिखा जाता है. ठीक है. और अब इसके पेजेस चेक करिएगा. ठीक है, अराउंड 60 होने चाहिए. मैं खुद पहली दफ़ा ये खोल रहा हूँ. मैंने सिर्फ मंगवाया था ताकि आप लोगों को ये शो करवा सकूँ. देखिए, ये तो सीधा सीधा कोड है. सही है, ये कोड है. इसके तो आप पेजेस एक किस्म का निकाल ही दें, क्योंकि ये तो आपने बनाना ही है ना. कोड तो आप बनाएंगे ही माशाल्लाह. अच्छा, ये लाइक आखिरी 15 पेजेस पे कोड था, और ये सिर्फ 45 पेजेस का एक थीसिस है, और एक्सेप्टेड है. और एज फार एज आई नो तो इन्होंने शायद इनका भी ग्रेड ए आया था, और उन्होंने कोई पब्लिश किया था पेपर. तो देखें, कोई इतना वो नहीं मैटर कर रहा कि आप पेजेस कितने रखते हो, बस आपकी सारी बात कंप्लीट होनी चाहिए. लेकिन वही अराउंड 60 के करीब आपका एक थीसिस होता है. ठीक है, और ये डिटेल्ड होता है ऑब्वियसली, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट बना लिया होता है. आपकी सर्किट डायग्राम्स, और आपने देखें सिमुलेशन, स्कीमेटिक्स सारी रियल टाइम होती हैं. अब आप कोई भी डाटा गूगल से नहीं उठाते. और अगर गूगल से उठाओ भी तो इसके अंदर आपको अलाउड होती है सिर्फ 13%, 12 to 13% प्लेजरिज्म अलाउ होता है इसमें. इससे ज़्यादा हो तो आपका थीसिस एक्सेप्ट नहीं होता. एक्सेप्ट नहीं होता तो ऑब्वियसली आपको डिग्री नहीं मिलती. सही है. अच्छा, इसी तरह आपने इस पे प्रेजेंटेशन बना लेनी होती है फाइनल. ठीक है, तो टाइम अभी है. ठीक है, तो मैं ये अभी आपको सिर्फ दिखा देता हूँ. अच्छा, अब ये कोई और है. ठीक है, अब मैंने तीनों. ठीक है, अब ये एक 17th सेशन का ही है. इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, आई गेस आप लोग जानते भी होंगे इस ग्रुप को. तो देखें, काफ़ी मतलब इसकी मुझे प्रेजेंटेशन का ना वो बहुत अच्छा लगा था. थीम बहुत मज़े की सिलेक्ट की है. ठीक है, मैं एंड पे आपको थीम्स भी प्रोवाइड कर दूंगा अच्छी सी. बाकी ये सारा डाटा भी होगा ताकि आप डिटेल से देख सकें. सही है, तो ये इस तरह करके आपने प्रेजेंटेशन दे देनी है. आगे से भी प्रपोजल प्रेजेंटेशन ही थी, क्योंकि फाइनल प्रेजेंटेशन थोड़ी लंबी होती है. अच्छा, देन आपके पास हार्डवेयर सबमिट कराना होगा आपने. वो ऑब्वियसली सैंपल मैं नहीं दिखा सकता. पोस्टर बनाया जाता है एक. ठीक है, मैं आपको पोस्टर दिखाता हूँ. पोस्टर बनता है पब्लिशर के ऊपर. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कई पब्लिशर है. एक MS जिस तरह वर्ड है, एक MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इस तरह एक MS पब्लिशर होता है जिसके ऊपर आप पोस्टर बनाते हैं. अब पोस्टर किस तरह का होता है, लेट मी शो यू जस्ट अ मिनट. अच्छा, तो जिस तरह स्टैंडीज होती है ना, जो सोसाइटीज़ के लोग हैं वो तो काफ़ी वाकिफ़ होंगे इस चीज़ से. जिस तरह लोग स्टैंडीज बनाते हैं इवेंट से पहले, उसी सारी डायमेंशन का एक पोस्टर बनता है. ये देख. अच्छा, अब पहले मैं आपको ना लाइक इसकी डायमेंशन दिखाता हूँ कि डायमेंशन किस तरह की होती है. ये देखें, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता बैक. तो ये देखें, ये है हमारे पास पोस्टर. ये आप पोस्टर साथ अपने हार्डवेयर के लेके खड़े होते हैं. ठीक है, ताकि आप कोई भी गुजरने वाला है ओपन हाउस के वक्त, ओपन हाउस जब हो रहा होता है, एंड पे ओपन हाउस होता है जहाँ पे सब अपना अपना प्रोजेक्ट डिस्प्ले करते हैं, तो आपका साथ ये पोस्टर भी खड़ा होता है. इस तरह का एक पोस्टर होता है. सही है, और एंड पे आपकी एक वीडियो होती है. उसका मैं आपको अब क्या दिखाऊँ, मतलब एक वीडियो बनती है, वो भी आपने 2 मिनट की वीडियो होती है, वो भी मैं आपको खैर एंड पे बता दूंगा. ठीक है, उससे. अच्छा, ये तो है वो उसके सारे कंपोनेंट्स कि आपने क्या क्या करना होता है FIP के अंदर. अब अगली चीज़ ये है कि हाउ टू चूज FIP. सही है, कि हम FIP सिलेक्ट कैसे करें. ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कि अब आपको 6th सेमेस्टर के बाद इतना आइडिया होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है. और जो लाइक बहुत ही अच्छे होते हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने अभी तक ये सोच के रखा होता है कि मैंने किस चीज़ पे काम करना है, और उनके पास टाइटल भी अच्छा सा होता है, और वो जल्दी से जाते हैं और सुपरवाइजर अच्छे अच्छे सेलेक्ट कर भी लेते हैं ऑलरेडी. और जो लाइक थोड़े स्लो स्टूडेंट्स होते हैं, वो अभी तक यही सोच रहे होते हैं कि मैं क्या करूं, या मुझे कोई और बताए आके कि मैंने क्या करना है, तो मैं उसी पे ही काम कर लेता हूँ. ठीक है, लेकिन अगर एज अ जनरल देखा जाए तो FIP के दो तरह से आप FIP चूज कर सकते हैं. अब ये वो FIP ऑब्वियसली चूज आपने खुद करना है ना, तो ये वो होगा कि आप कैसे चूज कर सकते हैं. ऑब्वियसली वो जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स आए हुए होते हैं, वो तो सुपरवाइजर के पास आए होते हैं ना, वो तो आपसे कांटेक्ट करेगा या वो डिस्प्ले कर देगा. उसके अलावा अगर आपने चूज करना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली ये होता है कि आप अपने डिपार्टमेंट की ओल्ड लिस्ट देखो, पिछले 5 साल की, या पिछले 4 साल की, या पिछले 3 साल की लिस्ट देखो कि किस किस चीज़ में काम हुआ है, अपने डिपार्टमेंट की भी, दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी रिलेटेड, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ की भी, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए. अब उसके भी
सैंपल्स पड़े हुए हैं। अब आई गेस तो मेरे पास मैंने सैंपल सारे इलेक्ट्रिकल के डाउनलोड करके रखे हुए थे, लेकिन मुझे भी पता चला कि आप लोग बाकी डिपार्टमेंट से यूनिवर्सिटी से भी हो, लेकिन मसला वो नहीं है, मसला ये कि चीज़ सेम ही होती है तकरीबन सब में। अच्छा, इस तरह इसके कोई सैंपल होते हैं, ये भी मैं आपको ना एंड पे सारे ही सैंपल ड्राइव में डाल के ना सेंड कर दूंगा। अभी आपको मैं जनरल सिर्फ एक चीज़ बताता हूँ कि आजकल किस किस चीज़ पे काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इनमें से डॉक्यूमेंट खोलता हूँ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कि किस चीज़ में काम हो रहा है, आपने ओल्ड प्रोजेक्ट्स देखने हैं और आपने चेक करना है कि क्या मैं यही दोबारा बना लूँ या इसमें थोड़ी सी चीज़ करूँ। यही आप दोबारा तब बना सकते हैं जब पुराना कोई प्रोजेक्ट 100% कंप्लीट ना हुआ हो, ठीक है। उसका कोई हो सकता है ना, जिस तरह कोविड आ गया तो काफ़ी लोगों के प्रोजेक्ट दरम्यान में ही रुक गए थे, तो इस चीज़ में फिर ये होता है कि आप उन्हीं का प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर लेते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया होता है। अब देखें, ये मेरे पास लिस्ट है 14, 15, 16 और 17 की, ठीक है। तो देखें किस किस तरह के हैं। एक आइडियाज इलेक्ट्रिकल वालों के लिए स्पेशल, देखें ऑटोमेटिक कार वॉशिंग, मेज सॉल्विंग रोबोट, फेस इमेज एनालिसिस, flexible AC transmission using thyristor switch reactance TSR, IoT based monitoring and controlling the substation, water management system using MQTT broker, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ऑटोमेटिक फ्लोर डिसइंफेक्टेंट रोबोट। आप देखें कितना अच्छा सोचा है इस बंदे ने। आपको पता है कोविड चल रहा है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट जो है आपके फिर आगे फाइनल लाइक किसी भी किस्म के फंड्स के लिए या स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, जो आप ना अपनी आसपास की सिचुएशन देख के सिलेक्ट करते हो, ठीक है। तो देखो कितना अच्छा था कि ऑटोमेटिक फ्लोर डिसइंफेक्टेंट रोबोट फ्लोर डिसइंफेक्ट करना कोविड के बाद। अगर आपने इस तरह क्लास ऑटोमेशन बहुत ही पुराने चल रहे हैं इस तरह के सिस्टम। सोलर ऑटो इरिगेशन सिस्टम, सोलर पावर्ड ऑटो इरिगेशन सिस्टम, फायर फाइटिंग रोबोट, ये भी अच्छी चीज़ है, ठीक है, अगर बने तो। इसी तरह आपके पास ये प्रिडिक्शन ऑफ स्पाइनल एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं होता कि आपका, अगर आप इलेक्ट्रिकल में है तो ये मस्ट है कि आपने इलेक्ट्रिकल से ही रिलेटेड प्योर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ उठाना है। आप कुछ भी उठा सकते हैं रिलेटेड टू योर इलेक्ट्रिकल, रिलेटेड टू, ठीक है। मतलब हल्का सा अगर 10% भी आप किसी ना किसी तरीके से रिलेशन में आ रहा है तो आप उसको पिक कर सकते हैं। इसी तरह मेरे पास और भी हैं, कोई ये 150-200 के करीब इधर मेरे पास पड़े होंगे, लेकिन अगर मैं सारे दिखाना शुरू हो गया तो टाइम खत्म हो जाएगा ऑब्वियसली, फिर आप लोग भी बोर हो जाएंगे। अच्छा, तो अब ना आगे चलते हैं कि एक तो तरीका ये है कि आप ना पुरानी यूनिवर्सिटीज़ के देखें और फिर चेक करें कि जो काम हो गया है उसी में ही मैं किसी और तरह का काम करना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं दरमियान में एक पॉइंट ऐड करता हूँ। देखिए, आप यूजुअली लोगों को ये खतरा होता है कि मैंने कुछ ऐसा प्रोजेक्ट उठा लिया जो एंड पे ना बना तो मैं फेल हो जाऊंगा। नहीं, कैसे फेल हो जाएंगे? देखें, आपकी जो मार्किंग होनी है 6 क्रेडिट आवर्स की, वो खाली क्या हार्डवेयर पे डिपेंड कर रही है? नहीं, आपने प्रपोजल देना है, आपने प्रपोजल प्रेजेंटेशन देनी है, फाइनल थीसिस देना है, फाइनल प्रेजेंटेशन देनी है, हार्डवेयर अपना बना के देना है, फिर पोस्टर देना है, फिर ये CD, इस सब के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है मार्क्स, ठीक है। तो इन केस खुदा न खास्ता अगर आपका हार्डवेयर नहीं भी बनता लेकिन आपकी बाकी सारी चीज़ें पूरी हैं तो भी आप फेल नहीं होगे। आपका लाइक कम बन जाएगा, बी माइनर लग जाएगा, बी लग जाएगा, लेकिन आप फेल नहीं होते। तो घबराना नहीं है। लेकिन आपको कोई मुश्किल चीज़ उठा के जब आप करेंगे ना तो आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा उस चीज़ का कि जो बाकियों ने जो डर गए थे ऑब्वियसली, जिन्होंने उसको उठाया ही नहीं कि जी हम नहीं बना सकते या नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली फिर वो पीछे रह जाएंगे कोई। तो कभी भी आपने घबराना नहीं है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि शुड योर प्रोजेक्ट बी इनोवेटिव मैट मस्ट, कि हम जिस तरह मैं खुद भी ये सोचा करता था कि जी FYP है तो मैंने कुछ ऐसा बनाना है, कुछ ऐसा बनाना है कि जो कभी भी ना बन सका हो। लाइक मैंने कुछ समझाया ना, तो इस तरह का मेरे माइंड भी होता था, बाकियों के भी अंदर हो। तो दिस इज नॉट अ थिंग, मतलब आपका बन गया है तो वेल एंड गुड। अगर आप बनाना चाहते हैं कोई नई चीज तो ठीक है, अगर आप नहीं बनाना चाहते, आप कोई पुराना काम करना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। BS में आपको इतना नहीं पढ़ाया जाता कि आप कोई नई चीज बना सके। हाँ, MS के अंदर आपको मस्ट कुछ ऐसा बनाना होता है MS या PhD के अंदर कि वो नया भी हो, उस पर रिसर्च पेपर भी निकले और तब आपको जाके वो डिग्री है। वो भी MS भी आजकल खुद खाता ही कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज में चल रहा है। खैर, तो ये जरूरी नहीं होता कि आपका बने। सपोज करें कोई ऐसा बंदा है जिसने ऐसी उठा लिया कि जी मैं ऑटोमेटिक कार बनाऊंगा, तो इसके बारे में मेरे मीम थी फॉर एग्जांपल, एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो एंड पे बनता इस तरह की कोई चीज़ है, लेकिन पॉइंट इज कि इसमें भी आप सीखेंगे या कुछ करेंगे तो नुकसान इसमें भी आपका नहीं है।
आई एम नॉट सेइंग कि आप उठाई ना कोई बड़ी चीज़, अगर आपके अंदर की कैपेबिलिटी है और आप समझते हैं कि कुछ ना कुछ बना लेंगे तो डू गो फॉर दैट आइडिया। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं रूब्रिक्स के ऊपर। रूब्रिक्स होते हैं वो रूल जिनके ऊपर आपका थीसिस इवेलुएट होता है। अब थीसिस आपके किस चीज़ पे चेक किया जाएगा? एक तो आपका लिटरेचर रिव्यू होगा, ठीक है, कि आपने अच्छा सा लिटरेचर रिव्यू किया है या नहीं किया। देखिए मैंने साथ उसके मार्क्स भी लिख दिए, क्योंकि ऑब्वियसली मैं खुद FYP कोऑर्डिनेट कर रहा था, तो ये चीज़ें हम लोग मिल के ही डिसाइड कर रहे थे। क्या लिटरेचर रिव्यू में अगर आपने सॉरी लिटरेचर रिव्यू अगर बेसिक सा किया हुआ है, ज़्यादा रिसर्च पेपर्स नहीं पढ़े, लिटरेचर कहते हैं आपने ऑब्वियसली या आपने बुक्स पढ़नी होती हैं या आपने उस चीज़ के ऊपर जितने रिसर्च पेपर्स होते हैं वो पढ़। ओ सॉरी, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, ये कि हाउ टू यूज FYP में एक तो पुरानी बातें हैं, दूसरी चीज़ ये होती है कि आप खुद अपने इंटरेस्ट के मुताबिक सर्च करें। कहाँ से? गूगल से या गूगल स्कॉलर से। एंड गूगल स्कॉलर बेस्ट चीज़ है। आपने किसी भी तरह का अपने एकेडमिक से रिलेटेड अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट सर्च करने हो, कोई थीसिस सर्च करने हो, फॉर एग्जांपल ये मैं दिखाता हूँ, बेशक इसमें मुझे 10 मिनट भी लग जाए, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिनका किसी को पता ही नहीं होता कि हमने सर्च किस तरह करने हैं पेपर। ठीक है, आप गूगल स्कॉलर लिखेंगे, scholars.google.com, ये हमारे पास इसकी वेब एड्रेस है। तब मैंने सपोज करें कोई एक आइडिया कोई बनाना चाहता है, ऑटोमेटिक कार, ठीक है, ऑटोमेटिक कार, और भी सपोज करें ये कार शफलर। अब मैंने सर्च किया तो ये इसमें मुझे निकाल के ही सिर्फ रिसर्च पेपर देगा और आर्टिकल्स देगा, ठीक है, और साथ में आप खुद भी ये देख सकते हैं। देखिए अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल सारे पेपर IEEE के निकलें, ठीक है, तो ये एडवांस सर्च में जाके आपने नीचे यहाँ पे लिख देना है कि रिटर्न, ये देखें, रिटर्न आर्टिकल ऑथराइज्ड बाय IEEE फॉर एग्जांपल, सही है, IEEE। अब आप सर्च करेंगे ना, एक मिनट, मैंने गलत जगह पर लिख दिया। अच्छा, रिटर्न आर्टिकल पब्लिश्ड इन, सॉरी पब्लिश में लिखते हैं ना कि पब्लिश किस कॉन्फ्रेंस में हुआ है, या ऑथराइज में तो आपने उस ऑथर का नाम लिखना है जिस ऑथर ने पब्लिश किया हो, और कहाँ से कब तक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पेपर निकले कि अभी रिसेंट ईयर में क्या काम हुआ है, तो 2020 से 2021 में कितना काम हुआ है। अब मैं सर्च करूँगा तो मेरे पास ये देखें, एग्जैक्ट उसने निकाल के दे दिया कि ये दो ऐसे काम हैं जो इस साल के अंदर हुए हैं। अगर मैं ये टाइम स्पैन बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कर देता हूँ 2010 से 2021 तक, तो फिर ज़्यादा निकलने चाहिए रिजल्ट, ठीक है, और ये सब IEEE के निकले, ठीक है, कि IEEE में पब्लिश हुए पेपर इस चीज़ के ऊपर। तो ये बहुत आसान काम हो जाता है गूगल स्कॉलर की वजह से, आप फिर वो पढ़ेंगे। अब ये इंस्टीट्यूशनल वाईफाई के ऊपर तो फ्री होते हैं, इंस्टीट्यूशनल वाईफाई होता है, तो वाईफाई हो ना आपका अगर कनेक्ट, तो ये IEEE के जो पेपर्स होते हैं वो खुल जाते हैं। अगर आप अपना वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको इनसे रिक्वेस्ट लेनी पड़ती है इंस्टीट्यूशन के हिसाब से, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पे, तो आप वो भी देख सकते हैं। खैर, तो ये अभी आप अभी से सर्च करना शुरू कर दें, जो जिन्होंने अभी तक कोई आइडिया नहीं लिया ना, तो गूगल स्कॉलर के ऊपर अपनी पसंद का कोई एक टॉपिक लिखें कि मैं जी ट्रांसफार्मर के ऊपर काम करना चाहता हूँ, ठीक है, ट्रांसफार्मर के ऊपर काम करना चाहते हो, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट्स निकाल के दे देगा। तो इतना आसान है, और इसमें कोई फजूल चीज़ भी नहीं निकलेगी, कोई फजूल साइट जिसकी कोई वैलिडिटी ना हो, तो इस तरह की चीज़ यहाँ पर नहीं निकलती। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मिस हो गया, तो इस तरह आप सर्च कर सकते हैं अपने FYP के ऊपर। खैर आगे चलते हैं। तो अब आगे थीसिस आपका इवैल्यूएट किस पे होता है। देखिए आपने अगर पुअर लिटरेचर रिव्यू किया है तो आपके 3 नंबर, एक्सेप्टेबल सा अगर अच्छा सा किया है तो 7 नंबर, अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से लिटरेचर रिव्यू किया और अपने से लिंक्ड किया है, खाली फजूल में नहीं आप करते रहे, अपने टॉपिक से अकॉर्डिंग करते रहे, बिल्कुल 100%, तो आपके एक्सीलेंट। इसी तरह आपका थीसिस में चेक होता है डिज़ाइन कैलकुलेशन आपने सही से किए हैं, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने कितनी परसेंट किए हैं, आपके पुअर, एवरेज या एक्सीलेंट मार्क्स लगते हैं। फिर आपने उसमें यूज़ ऑफ इंजीनियरिंग टूल आप नोट करेंगे, देखें जो ऊपर हेडिंग्स हैं ये तकरीबन आपके PLOs होते हैं जो आपकी डिग्री के हैं, क्यों जो आपके साथ मैप हो रहे होते हैं ना आपके काम के साथ, वो होते हैं। इस तरह यूज़ ऑफ इंजीनियरिंग टूल्स, देन रूब्रिक्स, डिस्कशन, इसके अंदर आपने देखना होता है रूल्स फॉर डिस्कशन और कंक्लूजन। ये कंक्लूजन अगर आपने अच्छी किया है तो आपके इस तरह के मार्क्स लगेंगे इन रूल्स के ऊपर। थीसिस अगर अच्छा इवेलुएट होगा तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स अच्छे लग जाएंगे। इसी तरह एंड पे ग्रामर या वोकैबुलरी भी चेक की जाती है, जो कि डिपेंड करते हैं कि आपका बैकग्राउंड कैसा है। वरना खैर आप एंड तक आके, मतलब आखिरी सेमेस्टर तक आके आपको इन चीज़ों से भी डील करना आ जाता है। अच्छा, प्लेजरिज्म भी ऑब्वियसली चेक होता है, वहाँ पे मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वो ऑब्वियस चीज़ है कि प्लेजरिज्म आपका 10% होना चाहिए। प्लेजरिज्म रिमूव कैसे करते हैं इसके ऊपर भी कभी हम डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह।
उसके बाद आ जाती है रूब्रिक्स फॉर प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंटेशंस। अच्छा, अब इसमें क्या क्या चीज़ चेक हो रही है? अगेन मटेरियल्स एंड मेथोडोलॉजी, ऑब्वियसली आपने किस तरह यूज़ किया है, आपने टीम वर्क कैसा किया है। टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई एक भी ग्रुप मेट नल्ला मतलब लाइक फजूल सा है तो वो आपके पूरे ग्रुप का जीपीए डैमेज कर सकता है। देन ओरल कम्युनिकेशन आपकी कैसी थी, फिर आपकी फाइनल डिज़ाइन कैसा था, और इसी तरह मेरे पास ये सैंपल भी है, बल्कि आप ये देख लें। ये देखें, अब ये हमने बनाया था सैंपल ऑफ फाइनल प्रेजेंटेशन, ठीक है, गोल्ड मेडल प्रेजेंटेशन के लिए। तो हम क्या चीज़ें नोट कर रहे थे, क्या स्टूडेंट्स मेड यूज ऑफ देयर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज गेन्ड ओवर द सेमेस्टर ड्यूरिंग द एफवाईपी, उसकी बेसिस पे आप मार्क्स दें। क्या मटेरियल अप्रोप्रिएट सिलेक्ट किया था उसने, मतलब क्या आपने कंट्रोलर या आपने कोई कंपोनेंट ट्रांजिस्टर क्या सही से आपने सेलेक्ट किया, या उससे बेहतर भी अवेलेबल था मार्केट में जो आप नहीं कर सके। इसी तरह हमारे पास फाइनल डिज़ाइन कैसा था, टूल सही से यूज़ किए हैं, सॉफ्टवेयर सही से यूज़ किया है, ठीक है। इसी तरह आपके पास आगे भी चीज़ें आती जाएंगी। प्रेजेंटेशन स्लाइड्स प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हैं या नहीं है, ठीक है। इसी तरह आपकी ग्रुप वर्क कैसा था, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका जो है ना वो इवेलुएट होता है, ठीक है। तो अब मैं बेसिकली आप लोगों का माइक भी ऑफ करवाया है, वरना एक मुझे चेक करने दें, आपने कोई क्वेश्चन पूछा है दरम्यान में तो आई गेस नहीं है, ये मुझे शो नहीं हो रहा। खैर, अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। ईच एंड एवरी थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, आपने ध्यान से सुननी है इस चीज़ को, या आपको दोबारा बातें नहीं बतानी इतनी डिटेल से किसी ने। अच्छा, उसके बाद ना सपोज करें कि आप ना ये काम, अच्छा अगेन ये सारी चीज़ें ना आप नहीं करते टाइमली, ठीक है। ये जिस तरह ये मैंने चीज़ें बताई हैं कि कैलकुलेशन टाइमली नहीं हो रही, लिटरेचर रिव्यू नहीं हो रहे, आप वैसे ही वैले बैठे हुए हैं और आप सुपरवाइजर के पास जाते हैं, तो ऑब्वियसली सुपरवाइजर ने तो आपको कहना है ना कि छणकने जाके बाजार खड़ा जे तुम्हारे को काम नहीं होंगे थे पहचान छोड़ो ना लो डुब के मर जाओ। तुसी कर की रहे हो सानू दसो तो सही ना, तुसी की कर रहे हो बैठ के, नहीं होता तो जान छड़ के घर जाओ। अच्छा ठीक है, तो ये बाय द वे आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट, ठीक है, लेकिन इनकी बात थोड़ी रिलेट कर रही थी तो मैंने बीच में डाल दी। तो ऑब्वियसली आप जब काम सही से नहीं कर रहे होते तो आपका सुपरवाइजर नाराज होगा एंड देन आपके ऑब्वियसली मार्क्स नहीं होंगे। अच्छा, गुड जीपीए का अगर आप एफवाईपी में लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहला क्या है, फॉलो टाइमलाइन। ऑब्वियसली जब आपको मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कि टाइमलाइन भी आप सही से फॉलो कर रहे हैं, आपने रूब्रिक्स भी सारे देख लिए हैं ध्यान से, उसके बाद तो ऑब्वियसली फिर तो आपका जीपीए आएगा ही है। सेकंड चीज़ इज सुपरमेसी ऑफ लाइक इस चीज़ की, ठीक है, कि आप सुपरवाइजर के साथ कांटेक्ट में रहें, हर रोज उनके पास जाते रहें, उनसे आइडिया लेते रहें। तो एटलीस्ट सुपरवाइजर को पता होना चाहिए आपका, क्योंकि एट द एंड आपका जो 80% डिपेंड कर रहा होता है ना मार्क्स। ऐसे ही हम कहते रहते हैं जी एक्सटर्नल ने बुरा वाइवा ले लिया, एक्सटर्नल ने ये कर लिया, एक्सटर्नल के हाथ में 20% क्या 15% भी नहीं होता। तो इसलिए सुपरवाइजर से कांटेक्ट में रहें उन, ये नहीं कि आप एंड पे बस शक्ल दिखाने गए हैं 7th के बाद और फिर 8th के बाद, तो ऑब्वियसली फिर वो नहीं आपको मार्क्स देगा। तो रूल नंबर 1 इज आप हर चीज़ टाइमली करें। रूल नंबर 2 इज कि आप सुपरवाइजर को अपना सुप्रीम लीडर मान के वो करें, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपका जो जब आप प्रोजेक्ट दिखाने जाएंगे अपना फाइनल, तो फिर कुछ ये सिचुएशन होगी। लेकिन आपका प्रोजेक्ट पड़ा है, ठीक है, और मी शोइंग माई एफवाईपी टू माई सुपरवाइजर एंड एक्सटर्नल इवेल्युएटर दैट आई हैव मेड ऑन लास्ट डे बिफोर द डेडलाइन, आखिरी दिन में आपने सारा दिन काम किया, तो फिर अबू को मालूम था तुम बहुत खुश होएगा। बहुत अच्छा दिए अबू चलता ठीक है। तो आपने इस तरह हंसते हंसते रास्ते लग जाने अगर आपका टाइम। खैर, अब हम थोड़े एंड की तरफ जा रहे हैं। अब मेरी तरफ से क्या हैक्स हैं, तकरीबन मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। अगेन अगर अभी भी किसी चीज़ ने किसी ने ध्यान से नहीं सुना तो यहाँ अभी आप कान मतलब लाइक ध्यान से सुने, मैं यहाँ पे रिवाइज भी करवाऊंगा सारी स्टार्ट वाली बातें, और आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो आपके आगे काम आने वाली है। सही है, ओके।
तो FYP हैक्स क्या है कि ग्रुप कैसा बनना चाहिए। ग्रुप आपका, हाउ टू मेक ग्रुप, हाउ टू मेक ग्रुप। ग्रुप ना मैंने 3 डिवाइड किए हैं। क्या, एक तो थीटास ऑब्वियसली 3.5 अबव जिनका GPA है, ठीक है। देन न्यूट्रल 2.7 से 3.4 तक, और देन ये हमारे सुपर हीरोज ऑब्वियसली जो मिस्टेकनली फील्ड में आ चुके होते हैं, जिन्होंने आगे जाके कोई मतलब लाइक कोई अपनी इंडस्ट्री खोलनी होती है या एक्टर बनना होता है कुछ, तो उनके लिए भी। तो आपने ध्यान से देखना हाउ टू मेक ग्रुप। हाउ टू मेक ग्रुप, अगर आप थीटाज हैं तो डोंट बी विद फ्रेंड्स इफ यू थिंक दे आर नॉट एलिजिबल। आप फ्रेंड के साथ ग्रुप नहीं बनाना। अब आप लोग काफ़ी गुस्से होंगे इस बात को कि जी मैं इस चीज़ को क्यों इनकरेज कर रहा हूँ कि नहीं बनाना, आप हमारी दोस्तियाँ तोड़वा रहे हैं। देखिए, आप ना ग्रुप खराब करेंगे ना, आप ग्रुप में काम नहीं करेंगे दोस्तों को रख के, तो आप उल्टा दुश्मन बन जाएंगे एक दूसरे के। क्योंकि आप मेरे दोस्त हो, मैं आपको कहता हूँ कि आपने ये काम करना ही करना है, आप नहीं करते तो उल्टा आपसे मेरी नाराज़गी बढ़ती जाएगी। लेकिन आप अभी टाइमली बता देते हो कि जी नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हुआ मतलब इस तरह काम करने की, मैंने थोड़ा और अच्छा काम करना है, तो हमारे पे बर्डन हो जाएगा। और आई डोंट वांट के मेरे फ्रेंड से मेरी फ्रेंडशिप खराब हो, तो मैं इसलिए आपके साथ नहीं करना चाहता। सिंपल बात है, इस तरह आपकी दोस्ती बच जाएगी, थोड़ी देर की नाराजगी होगी। आई नो पीपल जो FYP में आपके अपनी फ्रेंडशिप खराब करते हैं, ठीक है, और फिर सारी जिंदगी के लिए खराब करते हैं। तो ये फॉर दोज कि जिन्होंने 3.5 अबव जिनका लेने का इरादा है, ठीक है, और जो कहते हैं कि जी मैंने कोई बहुत अच्छी चीज़ बनानी है, तो उनके लिए अच्छा है कि फ्रेंड के साथ ना बनाएं। चूज करें कि कौन आपके इंटरेस्ट के मुताबिक काम करना चाहता है, उनके साथ बनाएं। न्यूट्रल 4 ग्रुप बना सकते हैं, 4 का ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल वाले जो है लाइक 2.7 से वो 2 फ्रेंड रख लें, बेशक 2 अच्छा काम करने लग दें, मतलब एक आपके साथ कोई काम करने वाला होना चाहिए। और ये चिल्स इन्होंने मतलब लाइक बाहर से बनवाना होता है एंड पे, जो बाहर से जहाँ जहाँ से बनाना है मैं आपको वही बताता हूँ कि बाहर से कहाँ कहाँ से बन सकता है प्रोजेक्ट, कोई बड़ी टेंशन की बात नहीं। सुपरवाइजर ऑब्वियसली थीटाज हैं, तो इन्होंने वाइजली चूज करना है सुपरवाइजर। और चूज करें कि जो जहाँ पे आप काम करना चाहते हैं ना, जिस डिसिप्लिन में, उसी डिसिप्लिन में आपके सुपरवाइजर ने भी काम किया हो, अदरवाइज सुपरवाइजर आपका बिल्कुल आपको गाइड नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो आपने उस तरह सेलेक्ट करना है। अगेन न्यूट्रल वालों ने भी इस तरह सुपरवाइजर सेलेक्ट करें कि कम से कम वो मार्क्स अच्छे देता हो और आप पे ना कॉन्टिन्यूसली चेक रखे, ठीक है, क्योंकि अगर वो आप पे कॉन्टिन्यूसली चेक नहीं रखेगा तो भी आप पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो चेक को लिए ज़्यादा और इसकी आप ना अपने सीनियर से काफ़ी हेल्प ले सकते हो कि जी कौन सा सुपरवाइजर कैसा है। चिल्स वाले ऑब्वियसली देखेंगे जो मुझे एंड पे पूछे और बस ग्रेड्स अच्छे दे दे। व्हेन टू स्टार्ट, ऑब्वियसली आपको टाइमलाइन, अगर आपने काम बनना है और आप चाहते हैं हर चीज़ परफेक्टली आपकी हो जाए, तो स्टार्ट ऑन टाइम, ये भी स्टार्ट ऑन टाइम। इन्होंने मर्जी है क्योंकि मतलब ठीक है, चिल रहे अपना आखिरी साल गुजारे और एंड प्रोजेक्ट भी बन जाएगा इंशाल्लाह। प्रपोजल खुद बना ले। अच्छा, व्हाट टू चूज, अगर आप, हाँ अब ये बात अगेन ध्यान से सुननी है। अगर ना आप चाहते हैं कि आपने कोई बाहर स्कॉलरशिप पे जाना है, MS आपने कोई बाहर अच्छी यूनिवर्सिटी से, कैम्ब्रिज से या कहीं से भी, हांगकांग से या जर्मनी से करनी है, तो आपने रिसर्च पेपर मस्ट लिखना है, ठीक है। रिसर्च पेपर रखते हैं ना, तो आपके स्कॉलरशिप लिखने के फुली फंडेड स्कॉलरशिप लिखने के चांसेस डबल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप यही है कि एंड पे कुछ ऐसा काम करें जिसमें आप रिसर्च वर्क या रिसर्च पेपर भी एंड पे लिख सके, जनरल कॉन्फ्रेंस जो भी। न्यूट्रल वाले, डोंट गो फॉर समथिंग दैट इज नॉट डन बिफोर। न्यूट्रल वालों के लिए ऑब्वियसली साथ उनके फ्रेंड भी हैं, तो कुछ ऐसा करें कि जो बन भी जाए एंड पे, ठीक है, तो कुछ बड़ी चीज की तरफ ना जाए। देन ऑब्वियसली ये तो कुछ ऐसा चूज करें जो बाहर से आसानी से बन सकता हो और इकोनॉमिकल भी हो, मतलब 40-50 हज़ार में, ठीक है। और ये बात आपको कोई, खैर। नेक्स्ट, व्हेन टू कंप्लीट, 50% आपका प्रोजेक्ट या जो भी आप काम कर रहे हैं ना, मैंने कहा था कि एंड पे आपने सिर्फ प्रपोजल देना होता है 7th में, लेकिन अगर जो बंदा काम करना चाह रहा है उसका 50% FYP भी कंप्लीट हो जाना चाहिए 7th सेमेस्टर के अंदर, ताकि 8th में उसका लोड कम हो, ठीक है, और वो जॉब्स के लिए टाइमली अप्लाई कर सके। क्योंकि जब जैसे आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया होता, उस फाइनल रिजल्ट के पहले पहले जब जॉब्स आ रही होती हैं तब आप लोग बिजी होते हो FYP के अंदर, ठीक है। तो आप ना जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हो और ना आप सुकून ले सकते हो, ना आप FYP कंप्लीट कर सकते हो, तो फिर आप डैमेज हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए 50% आपका पहले कंप्लीट होना, 50% बाद, एटलीस्ट 20% कंप्लीट होना चाहिए इनका भी। और ये बस टाइमली ऑर्डर कर दें ताकि, हाँ ये भी मैं आपको बताता हूँ खैर आगे जाके। अच्छा, अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इज FYP अ बिग थिंग, मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ है। इसका मैं स्टार्ट में आंसर आपको दे चुका हूँ कि है, ऑब्वियसली है, इनके लिए तो बहुत ज़्यादा है। जिस तरह हम कहते हैं ना
अप्लाई करने जाते हैं ना फर्स्ट जॉब के लिए, तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, आपके पास सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, एक आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, आपने कहाँ पे किस फील्ड में किस डिसिप्लिन में काम किया है, और दूसरी आपकी इंटर्नशिप्स। तो जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है FYP। आपसे और किसी चीज़ पे सवाल हो ना हो, तकरीबन 10 मिनट्स की डिस्कशन आपकी इंटरव्यू के अंदर FYP भी होती है, तो उनके इस हिसाब से दिस इज़ अ बिग थिंग ना ऑब्वियसली। लेकिन ठीक है, तो न्यूट्रल वालों के लिए भी बेस्ट चीज़ ये है, और क्योंकि इन्होंने आगे एक्टर्स बनना होता है, तो इनके लिए भी मैं अब आपको, दिस इज नॉट अ डिस्करेजिंग थिंग, ये मैंने इसलिए लिखा है कि ऑब्वियसली कुछ लोग जिस तरह मेरी तरह के हैं, मैं जब आया था यूनिवर्सिटी में तो मेरा कोई प्लान नहीं था इंजीनियरिंग करने का, ठीक है, अब मेरा आगे GPA आ गया मेरा, मैं तो मेडिकल की साइड पे था, तो मैं नहीं इंटरेस्टेड था। तो इस तरह के कुछ होते हैं जो आगे बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं, या कुछ तो इसलिए किसी ने अपने दिल पे नहीं रख लेनी कि जी मैंने कोई बुरा कह दिया किसी को, तो ये कुछ उन लोगों के लिए है जिनका कोई खास, जो इजीली बस इजी पीजी पास होना चाहते हैं। आगे ना, अब अगेन आपको ना रियल टाइम सिचुएशन में इमेजिन करवाने लगा हूँ मीम्स के थ्रू, ठीक है, जो आपके साथ तो होना है फ्यूचर में। अब आप ग्रुप्स, सपोज करें आपने अपने फ्रेंड के साथ ग्रुप बना लिया, ठीक है, और उस फ्रेंड ने ऑब्वियसली सारा साल, क्योंकि आपको पता था कि आपका जिगरी दोस्त है, तो उसे पता था कि आप ही उसका काम कर लेंगे उसकी जगह पे, तो उसने खुद कोई काम नहीं किया, ठीक है, तो फिर कुछ ये सिचुएशन होगी, ठीक है, कि टीचर वुड आस्क के अली प्लीज एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ योर प्रोजेक्ट, देन अली, जिसने सिर्फ प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिंट करवाई है, वो भी अपने दोस्त के पैसों से, वो क्या बताएगा वहाँ? ऑब्वियसली इस सिचुएशन के अंदर अगर वो खुद जवाब नहीं दे पाया, तो आपका टीम वर्क वाला जो रुब्रिक है वो खराब होगा, तो आपको मार्क्स सही नहीं मिलेंगे। देन आप ग्रुप सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली जब आप ग्रुप चूज कर रहे हैं तो आपको लोग अप्रोच करेंगे कि जी आप हमारे साथ ग्रुप बना लें। सपोज करें कि आपसे कि आपसे कोई आके कहता है या कहती है कि हमारे ग्रुप में आए, तो आपने उसको ये नहीं समझना कि मुझे तू राजी लगती है, जीती हुई बाजी लगती है, तबीयत ताजी लगती है, कि तूने क्या किया फिर अब। ठीक है, ऑब्वियसली सारे अपने मकसद के लिए आ रहे होते हैं आपसे कांटेक्ट करने, तो अगर कोई लाइक प्रीटीएस्ट पर्सन आपसे कांटेक्ट करता है कि जी मुझे अपने ग्रुप में रखने, तो इसका ये मतलब नहीं होता क्या वो राजी लगती है, क्योंकि इसलिए क्योंकि जैसे ही प्रोजेक्ट बन जाएगा तो ये सिचुएशन होगी आपके साथ। जब आप प्रोजेक्ट मेंबर प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद आपको बाहर खैर, दिस वाज समथिंग टू एंटरटेन यू, और प्लस दिस इज अ रियल सिचुएशन, ठीक है, मीम के अंदर आपको कुछ रियल बातों से आगाह करवाया। अच्छा, कुछ हैक्स और भी हैं स्पेशली कुछ ये होता है कि आपने FYP के अंदर बाहर से कुछ कंपोनेंट्स ऑर्डर करने पड़ जाते हैं, या फिर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही बाहर से बनवाना पड़ सकता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर ना आपने टाइमली ऑर्डर करना है। अगर आप चाहते हैं ना कि जी मुझे 20 अगस्त तक या 20 जुलाई तक या 20 जून तक ये वाली चीज़ मिल जाए, तो आपने टारगेट ऐसा सेट करना है कि जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर वालों को कहना है कि मुझे ये चीज़ 20 जून नहीं बल्कि 20 जून से पिछला महीना कौन सा होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, हाँ मई, 20 मई को मुझे ये चीज़ चाहिए, क्योंकि शिपिंग के दौरान चीज़ लेट हो जाती है और फिर आप लोग लेट, तो आपने हर चीज़ टाइमली ऑर्डर करनी है। और अगर आप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही बाहर से बना रहे हैं, ठीक है, तो फिर तो मस्ट है, आपने कहना है कि अगर आपका प्रोजेक्ट आपका सबमिट अगर होना है ना प्रोजेक्ट लेट से जुलाई में, तो आपने उन्हें तकरीबन 4 महीने पहले ऑर्डर दे देना है, ताकि आपका प्रोजेक्ट जो है वो जून में बन जाए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली 100% प्रोजेक्ट आपका सही नहीं बनेगा, आपको उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करवानी पड़ेगी। तो ये चीज़, अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे 16 में जिन्होंने बाहर से बनवाया था, ये कोई बड़ी बात नहीं, लोग बनवाते हैं, ठीक है, बेशक माने ना माने, तो उनका ये हुआ कि उन्होंने कोई 90,000 लगाया और उसका टाइमली आया ही नहीं, मतलब प्रोजेक्ट टाइमली वो दे ही नहीं सके, तो जिनकी वजह से उनका ग्रेड अच्छा नहीं लगा तो ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ फॉर दोस्त जो कि वो जो फर्स्ट 2 कैटेगरीज के थे, ऑब्वियसली जिन्होंने काम करना है थीटाज मतलब 2.7 अबव वाले। एक चीज़ होती है निगरी फंडिंग, ठीक है, नेशनल ग्रास रूट ICT रिसर्च इनिशिएटिव। ये फंडिंग आपको देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर आइडिया, कि आप किस आइडिया पे काम करना चाहते हो। आप उससे प्रोजेक्ट इन्हीं से ही पूछ लेते हैं कि ये कौन है, ठीक है, इन्हीं से पूछते हैं
देखिए इग्नाइट है क्या? इग्नाइट एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टार्टअप्स को फेवर करती है। ऑब्वियसली फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसी का आप स्टार्टअप भी ले सकते हैं, आप वही चीज़ बनाना एज ए प्रोडक्ट भी शामिल कर सकते हैं। तो ये आपको स्टार्टअप फंड करती है, ठीक है। और कोई आपको ये नहीं कि आज ये आपको फंडिंग करने के बाद आपसे पैसे वापस लिए जाएंगे, नहीं, आपको ये पैसे दे देंगे, आप इसको जो मर्जी करें उन पैसों, मतलब आप अपना प्रोजेक्ट बनाएं, आप स्टार्टअप करें और आप बस करें अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं, ठीक है। इन्हीं का ही एक ना क्या कहते हैं, ये इग्नाइट है जो स्टार्टअप को फेवर करते हैं। इन्हीं की एक ब्रांच है जो कि है निगरी, सही है। ये जो जिसकी मैंने अभी बात की है, ये जिस तरह आई इग्नाइट वाले स्टार्टअप्स को फेवर करते हैं, इन्हीं की ही एक मतलब इनिशिएटिव है इनका इन द नेशनल ग्रास रूट आईसीटी रिसर्च इनिशिएटिव के नाम से, जो फंड करते हैं आपके F5 प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आपके आइडिया, ठीक है। ये आपने प्रपोजल भेजने होते हैं 7th सेमेस्टर के स्टार्ट पे, और ये सिर्फ सिलेक्ट करते हैं आपके आइडिया की बेस पे, ठीक है। आपका बना ना बना वो तो बात की बात है ना, लेकिन ये सिलेक्ट उन प्रोजेक्ट करेंगे जिनका आइडिया अच्छा है, कुछ आइडिया न्यू है। इस तरह ना मैं इनके स्टैट्स पढ़े तो इन्होंने प्रोजेक्ट इनको सबमिट कराए गए हैं 9,000, इन्होंने एक्सेप्ट कितने किए हैं प्रोजेक्ट, अप्रूव कितने किए हैं 3,000 3,500 के करीब, और फंड कितने किए हैं 30, मतलब ये आपको फंडिंग 1 लाख तक भी देते हैं, ठीक है। उसके बाद जिनको ये फंड करते हैं उनकी दोबारा से कंपटीशन करवाया जाता है नेशनल लेवल के ऊपर, ठीक है। फिर वो नेशनल लेवल पे compete करते हैं और फिर 3-3 4-4 लाख तक भी बच्चे जीते हैं, उनके प्रोजेक्ट भी जीते हैं। देखें ये जो मैं आपको स्टैंडी की बात कर रहा था, देखें 7 स्टैंडी है, ये देखें 7 स्टैंडी इन्होंने खड़ी की हुई है। वो जो पोस्टर होता है साथ इनका प्रोजेक्ट है, साथ ही बंदे खड़े हैं नौजवान जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाया होगा, जिनका लाइक आई गेस सेलेक्ट हुआ होगा। तो इसकी डेट्स भी आने वाली हैं या आ चुकी होंगी, इनको आप नज़र में रखिएगा। इसकी भी डिटेल्ड वीडियोस 2 मैंने बनाई हुई हैं, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब ये किस तरह के प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं ये देखें बस ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद आई एम लाइक शटिंग डाउन माय सिस्टम। अच्छा अब देखें ये ना मैंने इनकी लिस्ट खोली हुई है 2021 की, ठीक है। इन्होंने किस तरह के सेलेक्ट किए हैं आप देखिएगा, उनका इम्पैक्ट या वो किस चीज़ पे फोकस्ड है, किस चीज़ पे। देखिए व्हीकल एक्सीडेंट प्रिवेंशन सिस्टम फॉर ब्लाइंड कर्व रोड, देखिए कितना मतलब इम्पोर्टेंट काम है ये, ठीक है। IoT बेस्ड स्मार्ट एरीगेशन सिस्टम, स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम, इसका अब मुझे नहीं पता, इन्होंने आगे आइडिया दिया होगा, नाम से तो मुझे कोई खास अंदाजा नहीं होगा कि किस एग्रीकल्चर की किस फील्ड को टच कर रहे हैं। स्मार्ट एक्यूरेट पार्किंग, देखें पार्किंग भी लोगों को इशू होता है, तो ये शायद वो सिस्टम इंस्टॉल करेंगे गाड़ी में जो खुद ही पार्क करवाए, ठीक है। आपने सिर्फ ये देखिए हज एप्लीकेशन आई है, जो इन्होंने ऐसी चीज़ें बनाई हुई हैं जिनका कोई सोसाइटी पे इम्पैक्ट है अच्छा खासा। विजन बेस्ड कॉटन पिकिंग रोबोट, देखें कॉटन को जो पिक कर सके, कपड़े को, साफ फली कॉटन को, इसी तरह, ठीक है। तो खैर मैं ये भी आपको शेयर कर दूंगा। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ योर आइडिया सिलेक्ट करते हैं, देन आपको 80K के अराउंड या जितने भी आप उन्हें लिख के भेजते हैं उतने वो सिलेक्ट करते हैं। आगे प्रोजेक्ट प्रोसीजर थोड़ा टफ होता है उसके लिए हम और हर हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स पर डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में ये तकरीबन 2 से 4 प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल में 4, मैकेनिकल में 4, सिविल में 4, इस तरह सब में 4 प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय साइड, थैंक यू सो मच। अब यू आर ओपन फॉर क्वेश्चंस, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चंस है तो ही कैन आस्क। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। Thank you so much, sir, for such an informative webinar. Now we'll be moving towards our question answer session. If you have any question, you can ask. Yes, Suman. अस्सलामुअलैकुम अली भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे आपने कहा कि मेंबर्स सिलेक्ट करने होते हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि सारे मेंबर्स जो हैं वो एक ही डोमेन सिलेक्टेड हों? ओके, तुम्हारी उस्ताद। अच्छा एक ही डोमेन नहीं, जिस तरह अगर मैं काम करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल मैं काम करना चाहता हूँ IoT बेस्ड ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन पे, ठीक है। अब ये आइडिया ये होगा कि ट्रांसफार्मर को जैसे ही कोई फॉल्ट आए ना तो वो खुद ही पता चला ले कि कौन सा फॉल्ट है, और साथ IoT बेस्ड है तो ऑब्वियसली वो मोबाइल पे या इंटरनेट के थ्रू मुझे भेजेगा। तो अब इस चीज़ में ऑब्वियसली ज़रूरी तो नहीं है ना कि मुझे IoT का भी पता हो, मुझे ट्रांसफार्मर का भी पता हो, ठीक है।
तो इसमें आपने इस तरह सिलेक्ट करना होता है कि ट्रांसफार्मर तो चलो मैं डील कर लूंगा। अब IoT बेस्ड किसकी नॉलेज अच्छी है, एक बंदा आप वो पिक कर लो। रिपोर्टिंग किसकी अच्छी है, एक बंदा आप वो पिक कर लो। एक बंदा आप वैसे जनरल पिक कर लो किसी और काम के लिए। इस तरह आप पिक करते हो। जरूरी नहीं होता कि आपका एक ही डिसिप्लिन या एक ही चीज से होना चाहिए। हाँ, एक और बात, लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि जी मैं क्या एक ही डिपार्टमेंट में अपना कर सकता हूँ? नहीं, ये भी नहीं। अगर आप कार्स बनाना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका काम नहीं है कि आपने कार बनानी है, कार मैकेनिकल वालों का काम है, तो आप मैकेनिकल के साथ भी मिलकर ग्रुप बना सकते हो। ग्रुप के लिए आप बाउंडेड नहीं हो किसी चीज के लिए। सुमन, और मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन ये था कि अभी जो आपने बताया कि फंडिंग जो है वो मतलब 4 इलेक्ट्रिकल को 4 मैकेनिकल को, तो वो ओवरऑल मिल रही है या फिर एक यूनिवर्सिटी में से जो है वो फंडिंग एक हाँ हाँ यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट को 4-4 चीज? हाँ, एक यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट को 4-4, मतलब हर यूनिवर्सिटी को मिलती है। ठीक है, थैंक यू। माय प्लेजर जी। किसी और का भी हैंड रेज था। ओके, अब्दुल रहमान गोंदल। सर मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि ये जो हम सुपरवाइजर जब चूज करते हैं तो सर उसके अंदर जो सुपरवाइजर को हम देखते हैं कि वो इंडस्ट्री से तो है मगर वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हमें। ठीक है, वो एक मसरूफ आदमी है, यानी कि कोई मतलब कि उसका कोई दो और भी काम होते हैं। तो क्या सुपरवाइजर प्रोजेक्ट बनाने में कोई इस तरह डिपेंड करता है कि वो हमारे साथ प्रोजेक्ट भी बना रहा होगा या कोई हमें इतना टाइम अच्छा, देगा? ये चीज़ ठीक है इंपॉर्टेंट ठीक है होती है या ठीक नहीं? है, ओके समझ गया। अच्छा, आपने ना एक बात याद रखनी है कि जो प्रोजेक्ट सुपरवाइजर होता है ना, उसने आपको प्रोजेक्ट बना के नहीं देना होता ना, आपने ना उसने खुद अपने हाथ से काम करना होता है। वो आपको जो प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल, जिसका इंडस्ट्रियल स्ट्रॉन्ग है ना बैकग्राउंड सुपरवाइजर का, वो उसके पास लिंक्स होते हैं, वो आपको बता देगा जी ये चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी, या आपने ये रिसर्च पेपर यहाँ से नहीं यहाँ से ढूंढना है। ठीक है, तो आपको गाइड चाहिए होती है। तो अगर आपको वो एक वीक में घंटा भी दे रहा है, ठीक है, लाइक घंटा वाला घंटा नहीं, घंटा मतलब 1 आवर, या अगर आप 1-2 घंटे भी दे रहे हैं तो आप यू शुड गो फॉर दैट पर्सन। ठीक है, इंडस्ट्रियल वाला। तो जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ बनाए। तो आपको मतलब लाइक कंक्लूजन इज कि आप उसके पास जाएं अगर आप समझते हैं कि उसका और आपका बैकग्राउंड या आपका इंटरेस्ट और उसका बैकग्राउंड सेम है तो। ओके सर, थैंक यू। माय प्लेजर। नेक्स्ट। Sir, an attendee is asking if we want to opt for doing MS, should our FYP be related to research oriented? Excuse me, if you want to Opt for doing MS, should our FYP be यस related to यस research यस oriented? यस 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 100%। ये मैंने बात दरमियान में भी बताई है कि अगर आप MS ही करना चाहते हैं, जॉब की तरफ कोई आपका इरादा नहीं है, तो आप रिसर्च की तरफ जाएं, रिसर्च पेपर लिखें, चाहे जर्नल चाहे कॉन्फ्रेंस, चाहे आप किसी के पार्टनर में अपना नाम लिखवा लें, ठीक है, ऑथर में, तो आप उस पर जाएं, आपको बाहर के जो है ना स्कॉलरशिप के मौके बढ़ जाएंगे जी। नेक्स्ट, उसामा। हाय उसामा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इट्स उसामा फ्रॉम नेस्ट। सर माय क्वेश्चन इज दैट जो भी आपने बात कर रहे थे कि जो अभी बात होगी है जो रिसर्च पेपर वाली, तो सर मैं बात ये पूछना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर से हूँ, तो सर यहाँ पे ये चीज़ नेसेसिटी नहीं है कि आपने कोई प्रोटोटाइप कोई मॉडल बना के दिखाना है? नहीं 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 नहीं, आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप रिसर्च उठाना चाहते हो तो आपके 2 ग्रुप है खाली, मतलब आप अपने मेंबर्स कम कर लो, ठीक है, मतलब 4। हाँ अच्छा, एक और पॉइंट आपने उठा दिया। अगर आपने 4 मेंबर्स लेते हो तो वो किसी बड़े काम के लिए, वरना वो सिलेक्ट ही नहीं करता। आप कहते हो आपने खाली रिसर्च पेपर लिखना है, वो तो 2 बंदे भी लिख सकते हैं, वो तो 2 बंदों का भी काम है। तो अगर आप रिसर्च पेपर लिखना चाहते हो तो ऑब्वियसली छोटी मोटी भी किसी चीज़ के साथ या किसी मशीन के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रोटोटाइप हो। नहीं सर, अगर मैं मतलब 6 सेमेस्टर तक मेरे 2 पेपर अगर पब्लिश हैं तो और अगर मैं थोड़ा सा इस मामले में भी डबल माइंडेड हूँ कि हो सकता है कि मुझे आगे, क्योंकि डे बाय डे आपको पता है सिनेरियो काफी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है आजकल, तो मैं इस चीज में थोड़ा सा डबल माइंडेड हूँ कि मुझे इंडस्ट्री भी जाना पड़ सकता है। तो फिर मेरे जो 2 पेपर पहले के पब्लिश हैं, बस मैं उन्हीं पे इक्तफा करके आगे मतलब FFP पे मूव कर दूँ। MS की, हाँ FF। अब मेरी बात सुनो, देखो हमेशा अपना ना साइड पे ऑब्वियसली हमने एक ऑप्शन रखना होता है, सेकंड ऑप्शन। तो अब आप रिसर्च पेपर ऑलरेडी निकाल चुके हो ना, तो इसका मतलब आपको MS के लिए कोई आगे प्रॉब्लम नहीं होनी। तो मैं फिर ये चाहता हूँ, मतलब मेरा पर्सनल सजेशन ये होगा
कि फिर आप FYP ही बनाओ कोई हार्डवेयर फॉर्म में। फिर इसका ये है कि आपका मैकेनिकल की जॉब्स पे भी तो ज़्यादा हो जाएगा ना, उस साइड पे भी आप जा सकते हो इजीली, क्योंकि आपका जॉब में FYP बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। आपने FYP पे जो काम किया होगा ना जॉब के लिए, तो अगर आप मेरी पर्सनल सजेशन लेना चाहते हो तो फिर अब अगर आपके ऑलरेडी पब्लिश है पेपर, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, लाइक है, तो आप मेरी स्टूडेंट हो ना अफसाम, तो फिर आप FYP की तरफ जाओ। सर एक लास्ट थिंग ये बताइएगा कि देखें जिस तरह हमारे इधर होता है SMME में कि टीचर्स बहुत सारे आइडियाज मतलब इंडस्ट्रीज के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, खुद देते तो हैं एग्जैक्टली। वहां पे इस चीज का क्या मतलब पीछे बात रह जाती है कि आप अपना आइडिया फ्लोट करें, क्योंकि जब आपको टीचर कोई प्रोजेक्ट दे रहा है तो उसमें फिर आपका इंटरेस्ट तो चले आ जाता है कि ऑटोमोटिव हैं, फ्लूइड्स हैं, जो भी है, लेकिन फिर आपका उतना तो नहीं रहता इंटरेस्ट। तो फिर अगर आप फ्यूचर में कोई और फील्ड करना चाहते हैं परस्यू और आपका FYP बहुत ज्यादा उसे लिंक नहीं है, तो ये चीज चल जाती है। हाँ अच्छा, अब फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है कि वो आपको ये नहीं कहते कि आपने वही उठाना है, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट होते हैं वो आपको सिर्फ एक लिस्ट देते हैं, आप चाहते हो उसमें आपको आखिरी ऑप्शन ये देते हैं कि योर ओन आइडिया। अगर आप अपना ओन आइडिया शेयर करना चाहते हो, उस पर काम करना चाहते हो, तो आप सिंपली गो फॉर दैट पर्सन, ठीक है, तो वो आपको वो वाला आइडिया सेलेक्ट कर लेगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पार्ट है आपका क्या था, मतलब SMM में भी आपकी ये नहीं है मतलब कि आपने इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट ही रिलेक्ट पे डिपेंड करना है, आप खुद भी दे सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आपने क्या कहा था इसका पार्ट? तो सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था, इसका पार्ट ये था कि देखें अगर कोई FYP में ऐसा उठा लेता हूँ कि मतलब बाद में जब मैंने इंजीनियरिंग कर ली तो मैं अपनी फील्ड चेंज करना चाह रहा हूँ, तो सर उसका कुछ इम्पैक्ट होता है उस चीज पे? अगर आप चेंज कर लेते हो फील्ड तो फिर ऑब्वियसली वो आपने फील्ड चेंज किया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो अब आपसे FYP से रिलेटेड पूछेंगे। वो ऑब्वियसली यही पूछेंगे कि क्यों चेंज किया है, या मतलब क्वेश्चन मैं गेट नहीं कर पा रहा कि आपने जब फील्ड चेंज किया तो MS के लिए या आगे मतलब जॉब के सर लिए जब फील्ड चेंज जब की? आप इंडस्ट्री में गए तो आपने देखा कि जी जो आपने काम किया उससे आपको बेहतर जगह जॉब मिल गई, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल अच्छी थी, तो लोगों को मैंने काफी सारों को देखा जो अपनी फील्ड स्विच कर लेते हैं इंटरेस्ट। तो सर पीछे फिर वही मैं पूछ रहा हूँ कि जो FYP है फिर इतना उसकी इम्पैक्ट क्या नहीं इम्पोर्टेंस? लड़ता, फिर इतना इम्पैक्ट नहीं होता, फिर नहीं होता अगर आपने जॉब कर ली। फिर जनरल पूछेंगे बस आपने क्या बनाया था, उसमें आप 2 मिनट के डिस्कस करेंगे, ओनली टू एवेलुएट यू कि आपको वाकई करना आता है काम, कि आप हमारी कंपनी में भी काम कर लेंगे अगर आपने ये काम भी किया है, तो फिर वो जनरल हो जाती है बात। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट दाऊद खालिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं दाऊद खालिद UIT टेक्सला से कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और 20 सेशन है अभी, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमें किस तरह से लर्निंग करनी चाहिए कि हमें नेक्स्ट मुश्किल ना हो। जिस तरह हमें अपना जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है या फिर हमें MS वगैरह करना है, तो उसके लिए हमें किस स्ट्रेटेजी के साथ चलना चाहिए, काइंडली थोड़ा बता दें। ओके, जनरल क्वेश्चन है। अच्छा दाऊद देखो, अभी से ना पहली चीज़ होती है, क्योंकि आप फेसबुक तो ऑलरेडी इस्तेमाल कर ही रहे होते हैं, फेसबुक पे कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ स्कॉलरशिप के ग्रुप हैं, ठीक है, HEC स्कॉलरशिप के ग्रुप, जिससे आप हर वक्त नज़र में रहोगे कि जी मैंने किस किस्म की स्कॉलरशिप आती रहती है, तो आप वो ज्वाइन कर लो, फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, लिंक्डइन, ठीक है, ठीक है, ये पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं। लिंक्डइन के ऊपर अपना अकाउंट बनाओ, अच्छी सी प्रोफाइल बनाओ, ताकि आपको स्कॉलरशिप्स का भी पता चलता रहे, इंटर्नशिप्स का भी पता चलता रहे, और ये भी पता चलता रहे कि दुनिया में हो क्या रहा है, ठीक है, आपकी फील्ड से रिलेटेड आगे क्या हो रहा है, आप किस चीज़ में आगे इंटरेस्ट ले सकते हो। सेकेंड चीज़, लिंक्डइन मस्ट। थर्ड चीज़ होती है आपका सर्च, ठीक है, सर्चिंग अच्छी करो अपनी, जो कि गूगल स्कॉलर से मैंने बात की है। आप हर हफ्ता एक रिसर्च पेपर नहीं तो आप सेमेस्टर में 2 रिसर्च पेपर पढ़ने की आदत डालो, क्योंकि अभी आप 20 सेशन में हो, 20th सेशन में हो, तो आप एक रिसर्च पेपर पढ़ोगे ना, आप उसकी कंक्लूजन पढ़ोगे, आप उसकी ये पढ़ोगे, तो आपको उस हिसाब से समझ आना शुरू हो जाएगी कि मैंने क्या करना है आगे फ्यूचर में। आपको इंटरेस्ट समझ आना शुरू हो जाएगा कि अच्छा यार ये तो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, यार मैं तो यही आगे प्रोजेक्ट बनाऊंगा, या मेरा इंटरेस्ट इस तरफ है। इस वक्त अपना सिर्फ इंटरेस्ट देखो कि आप करना क्या चाह रहे हो, क्या चीज़ बनाना चाह रहे हो। थर्ड चीज़, फोर्थ चीज़, अपने फाइनल ईयर स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट में रहो, वो आपके साथ जॉब शेयर करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि इस तरह करोगे तो मार्क्स आएंगे, क्योंकि अब मैं अपने आपके डिपार्टमेंट का तो मुझे नहीं पता ना, आपके डिपार्टमेंट का तो आपके सीनियर्स को पता होगा, तो आप उसके साथ कांटेक्ट में रहो, जो गोल्ड मेडलिस्ट हो या जिसने अच्छा GPA लिया हो, वो आपको गाइड कर सके स्टूडेंट के बाद। लास्ट चीज़ ये है कि लोग आपको एंड तक नहीं बताते, टीचर्स भी, कि देयर आर प्रॉपर बुक्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ जॉब टेस्ट्स। तो अपने डिपार्टमेंट की, अपनी फील्ड की जॉब टेस्ट से रिलेटेड बुक्स को अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है, MCQ से रिलेटेड।
और एक और भी चीज़ है, वो क्या है कि ऑब्वियसली मार्क्स भी तो आपने लेने हैं, आपका जीपीए ही एंड पे अच्छा नहीं आएगा तो इन सारी चीज़ों का फिर कोई, तो मैं बाकियों को भी ये गाइड करता रहता था जब मैं खुद भी पढ़ रहा था कि अगर आप सारा वीक नहीं पढ़ते, वीकेंड पे सिर्फ आप 2-2 घंटे भी पढ़ लेते हो ना, सिर्फ वीकेंड पे, तो भी आप 3.5 तक जीपीए गेन कर सकते हो। तो आप पढ़ने की रूटीन बस अपनी सही से बनाओ, सिंपल। क्लास में लेक्चर अटेंड रेगुलरली सुनो, सारा कुछ बता दिया। और ऑब्वियसली मुझे फॉलो करो यूट्यूब के ऊपर, मैं साथ साथ आपको देता रहता हूँ हेल्प। दानिश खान, थैंक यू सामा। दानिश सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर जो आपने हमारे पास हमें इग्नाइट की लिस्ट डिस्प्ले कराई है एट द एंड, उसमें हमारी यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट ऑलरेडी लिस्टेड और हम उसको सेम सुपरवाइजर से उसी प्रोजेक्ट को मजीद मॉडिफाई करें, तो क्या हम उस प्रोजेक्ट को नेक्स्ट ईयर मतलब जब हमारा टाइम होगा तो उसको ये उसकी डॉक्यूमेंट पब्लिश कर सकते हैं, या उसको हम कंपटीशन के लिए सेंड कर सकते हैं? सुनो ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन आपको उसका नाम चेंज करना पड़ेगा और थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट, मतलब उसने अगर नाम कोई स्मार्ट या डेवलपमेंट कुछ ऐसा किया हुआ है तो एग्जैक्टली वही चीज़ बनाओ, लेकिन उसका नाम चेंज कर दो, ठीक है, अच्छा सा नाम, तो सिलेक्ट हो जाता है दोबारा। ओके सर। ओके नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये भाई मूवीज ओवर है। अच्छा मेरा क्वेश्चन एक बिल्कुल जनरल सा बेस था कि ना अभी जैसा यूडी टेक्सला में ना अभी लाइक हम लोग 6 सेमेस्टर से शुरू हुए हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ना इंटर्नशिप की तरफ फोकस्ड हैं। तो ये था कि अभी बिल्कुल भी ना लाइक मैं अपनी बात करूँ तो अभी तक कोई स्ट्रीम डिफाइन नहीं की कि हमने किधर एफआईपी मतलब कौन सा टॉपिक उठाना है या किस सुपरवाइजर के पास उठाना है ना। ठीक। तो इसमें मैं बस ये चाह रहा था कि आप सिर्फ एक कोई इनिशियल स्टेप्स गाइड कर देंगे पहले, जिस तरह वो मैं बिल्कुल आपकी जो प्रेजेंटेशन था कि आप पहले अपनी स्ट्रीम खुद ही डिफाइन करो, रिसर्च पेपर्स वगैरह पढ़ो। तो मैं ये कहना चाह रहा था बेसिकली कि जो बेसिक है कि वो बंदा क्या चीज़ से स्टार्ट करे, कि उसने सिर्फ पहले अपना टॉपिक चूज़ करे फिर सुपरवाइजर के पास जाए। एग्जैक्टली ओके। अच्छा आपके लिए ना जिसने अभी बिल्कुल ही नहीं सीख, ऑब्वियसली मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं क्यों कहूँ कि जी मैं कोई बहुत ही बड़ी चीज़ था या मैंने पहले से सर्च की, मैं भी उसी आपकी सिस्टम में था। पहली चीज़ ये है कि आपने ना अपने डिपार्टमेंट की जिस तरह मैंने आपको लिस्ट बताई है वो सारी लिस्ट गो थ्रू करो प्रोजेक्ट्स की, ताकि और उसमें से ना कोई 10 to 20 प्रोजेक्ट्स निकालो। ऑब्वियसली 200 के करीब प्रोजेक्ट्स होंगे जो मैं भी आपको एंड पे शेयर करूँगा, या 150, उसमें आपने 10 से 20 प्रोजेक्ट्स निकालने हैं। फिर उसके बाद आप ये चेक करो कि मैं इसमें से किस में काम कर सकता हूँ या किन किन में काम कर सकता हूँ, ठीक है। फिर उनमें से कोई 3 शॉर्ट लिस्ट करो, उसके अकॉर्डिंग फिर ग्रुप सेलेक्ट करो अपना, ठीक है। चेक करो कि कौन इस ग्रुप पे काम करना चाहता है, स्टेटस लगा दो, आजकल तो बड़ा आसान है कि आई एम विलिंग टू डू माय एफआईपी ऑन दिस टॉपिक एंड इफ समवन विलिंग तो मैं कोई विलिंग है तो अपना देना। उसके बाद जैसे ही आपको एक ग्रुप मिल जाता है प्रॉपरली, फिर आप उस ग्रुप के साथ और वो उन 2-3 आर्टिकल जो 3 टाइटल जो आपने वो फिर आप 3-4 सुपरवाइजर हिट करो कि उसका कौन सा वो वाले किस ने करवाए हुए हैं लास्ट टाइम उस तरह के प्रोजेक्ट्स, उसको आप मेल कर दो कि जी आई एम डैश, दीज आर माई प्रोजेक्ट मेंबर्स एंड आई एम विलिंग टू डू माई लाइक एफआईपी ऑन दीज टॉपिक्स। फिर उनमें से कोई एक आपको रिस्पॉन्ड कर देगा, या ऑब्वियसली एक नहीं तो हो सकता है तीनों भी रिसर्च रिस्पॉन्ड कर दें आपको, कि अगर आपका टाइटल आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सर्च किया हुआ होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली जब वो एक्नॉलेज कर लेगा तो आप खुश हो जाओगे कि ठीक है हो गया काम। तो फर्स्ट थिंग इज कि आप अपना बैकग्राउंड मतलब आप अपने पिछले और उससे पिछले सेशन के एफआईपीज देखो, अपने डिपार्टमेंट के भी और बाकी के भी, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। और एक और चीज़, अगर आप सेलेक्ट कर लेते हो 3 आपने सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद ना क्रॉस क्वेश्चनिंग आपसे सुपरवाइजर करता है कि आप क्या पता क्या है इस चीज़ के बारे में, तो आप कहते हो जी मुझे बस नाम पसंद आया, ऐसे नहीं। आपने वो 3 जब सेलेक्ट करने हैं तो उसके बाद उससे रिलेटेड सर्च भी करनी है गूगल पे, उसका बैकग्राउंड पढ़ के जाना है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग जो आपको वो क्वेश्चन पूछते हैं ना क्रॉस में, आप उसको देने के जवाब देने के काबिल हो, तब वो आपको सिलेक्ट करेगा, वरना आपको सिलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। और यहाँ पे बस मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि जिस तरह आपने मेंशन किया कि आप पुरानी लिस्ट वगैरह पढ़ जो उसमें से कोई टॉपिक्स शॉर्ट डाउन कर लो ना, तो उसको हमें वो जो टॉपिक्स हैं बेसिकली उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है या फिर है हाँ ठीक है। अब सुनो, टॉपिक को मॉडिफाई करना इसलिए ज़रूरी है कि उस टॉपिक के चीज़ों पे फिर आपको प्लेजरिज्म मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आप जब सेम टॉपिक उठा के सेम थीसिस तो नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका हुआ होता है किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे, तो वो एंड पे आपका
प्लेजरिज्म में काउंट होना शुरू हो जाएगा। तो आप उसका टाइटल भी चेंज करोगे और हल्की सी उसके अंदर मॉडिफिकेशन करोगे, दो आप एंड पे प्रोजेक्ट एंड पे वही बना के दे दो हार्डवेयर में, लेकिन आपका स्टिल थोड़ा सा डिफरेंट एंगल पे काम होना चाहिए जो काम उधर हुआ हुआ है। और जो ठीक है समझा रही है, मतलब क्या अगर आप इतना भी एडिशन कर लेते हो ना कि किसी ने अगर काम आर्डिनो पे किया है तो आप वही काम PID पे या रेस्पबेरी पे कर लो तो भी इट इज एक्सेप्टेबल, लेकिन स्टिल नाम चेंज होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। ओके नेक्स्ट। Sir, a participant is asking, since you have evaluated various projects, how will you order them from most to least important? Number one, team members, then FYP title, then supervisor, and then team collaboration. Okay. So the main thing is your title, then your FYP presentation, ठीक है कि आप प्रेजेंट कैसा करते हो, देन योर थीसिस, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें। अगर आपका टीम वर्क एंड पे सही ना हुआ ना फाइनल प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है, फाइनल प्रेजेंटेशन के अंदर समझ आ रही हुई कि जी किसी ने इतना काम किया है इतना काम किया, तो ये होगा ज़्यादा ज़्यादा कि अगर आपको B मिलना है, मतलब आपको A मिलना है तो आपको A माइनर मिल जाएगा, आपको A मिलना है तो आपको B पॉजिटिव मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका टाइटल ही अच्छा नहीं है और आपने प्रेजेंटेशन बिल्कुल ही अच्छी नहीं की थी, अच्छा नहीं किया, तो ऑब्वियसली फिर आपका वो नहीं हुआ होगा, मतलब वो बिल्कुल ही अच्छी चीज़ नहीं। तो टाइटल इज़ इम्पॉर्टेंट, देन उसका सुपरवाइज़र, और देन उसके बाद बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि सुपरवाइज़र पे डिपेंड कर होता है कि उसने कितने आपको मार्क्स दिए। Okay, sir. FYP टाइटल, सुपरवाइज़र, FYP प्रेजेंटेशन, थीसिस, और फिर इसके बाद बाकी सारी चीज़ें जो भी होती। नेक्स्ट सर एक लास्ट चीज ये बता दें कि जो ग्रुप बनाना है वो GPA की बेस पे आपने मतलब बाकी सारी चीजें तो क्लैरिफाई कर दी थी कि मतलब नहीं, GPA की मोशन बेस पे वगैरह, जरूरत नहीं है। GPA की बेस पे नहीं, उसका इंटरेस्ट देखे ना। और GPA ठीक है, एक GPA भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बंदे का पता चलाने के लिए कि वो कितना काबिल है, लेकिन एज अ फ्रेंड भी आप उस चीज़ को जानते होते हो उस बंदे को कि जी इसने कितना काम कर सकता है। और देखो मैंने अभी जिस तरह थोड़ी देर पहले बात कही है कि ज़रूरी नहीं है ना कि चारों आप ग्रुप मेंबर जो सिलेक्ट कर रहे हो वो एक ही नेचर के हों या वो सारे एक ही चीज़ में माहिर हो। कुछ आपने ऐसे भी तो सिलेक्ट करने पड़ सकते हैं जिसका GPA नहीं अच्छा लेकिन उसकी रिपोर्टिंग अच्छी है, ठीक है, जिसका GPA नहीं अच्छा लेकिन वो समझ जाता है बात को और जो आप उसे समझाओगे वो कर लेगा, जिसका GPA नहीं अच्छा लेकिन वो उसी चीज़ पे फोकस्ड है जिस पे आप फोकस्ड हो, ठीक है। तो इसी तरह जिसका GPA नहीं अच्छा लेकिन वो उसके पास पैसे बहुत है, तो वो मुख्तलिफ है, लाइक चीज़ है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। मतलब तो सर ऐसे भी जहाँ पे सेक्शन कॉन्टिन्यूसली शफल हो रहे हो, मतलब हर साल बाद सेक्शन शफल हो जाते हो, वहाँ पे कैसे पता चलता है? तो वहाँ पे तो और अच्छा पता चल जाएगा ना, आपको पूरे का पता होगा कि आपके जो 7 वाले सेक्शन है उसका भी आपको अंदाज़ा होगा। अब आप ये कहना चाह रहे हो कि एक सेमेस्टर में अंदाज़ा नहीं हो सकता, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब मैंने कहा है ना कि ये जो टॉपिक जो 6 सेमेस्टर होता है ये आपका इसी चीज़ के लिए होता है कि आप अच्छे तरीके से अपना टाइटल भी सिलेक्ट करके रखो, आप ग्रुप मेंबर भी ध्यान रखो कि किसने कितना कितना GPA लिया और किसकी क्या चीज़ अच्छी है। मेरे ख्याल में तो ये अच्छी चीज़ है कि शफल होने नहीं चाहिए, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए कि कौन कितना पानी में। सर ऑनलाइन है, ऑनलाइन में नहीं पता चलता। हाँ, ऑनलाइन में नहीं पता चलता, इस चीज़ का है इशू। फिर यही है कि एंड पे GPA रह जाता है, या आपके दोस्तों में से भी आपको पता होता है कि कोई कितना अच्छा है। हाँ, आप लोगों के लिए थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा क्वेश्चन था। ओके नेक्स्ट। लेकिन इंशाल्लाह आगे वाले 2 सेमेस्टर आपके फिजिकल होंगे तो आपको इंटरेक्शन का मौका मिले। नेक्स्ट जी, हसनैन मुजम्मिल। अटेंडेंस के सर अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन मुझे शो नहीं हो रहे। जी सर जैसा कि आपको पता है 19 सेशन 20 सेशन ये हमारा ऑनलाइन ही है, तो छापा सिस्टम ही चले जाता, तो हमें यही नहीं पता कि हमारी क्लास वाले कौन है। तो हमने ना उससे प्रैक्टिकल वर्क करा कि हमारी लैब नहीं हुई, तो जब हमने फाइनली ये प्रोजेक्ट बनाना होता तो उसका इफेक्ट होता है इस पर। इंटर्नशिप्स करा भी चलो होगी, तो हमें प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया, तो ये एक फाइनल की प्रोजेक्ट हमें शुरू से रिसर्च करनी होती है, प्रैक्टिकल काम करना होता है, या उसके लिए ये जो हमारी लैब्स थी ये इंपॉर्टेंस रखती थी। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं
सर अभी तो हम फोर्थ सेमेस्टर में, मगर अभी इतना माइंड नहीं कि रिसर्च करनी है क्या, मगर फाइनली प्रोजेक्ट की रिस्पेक्ट से करो। अगर हमने फाइनली प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए हमारी लैब से जो प्रैक्टिकल है वो ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि हमने तो वो की नहीं। अच्छा ओके ओके। अच्छा ऑब्वियसली मैटर तो करती है, ठीक है, लेकिन अब आपकी जो आजकल की सिचुएशन है इसमें आपको पता है कि क्लासेस नहीं हो रही, तो आप अगर खुद से काम करने, याद रखो कि अगर आप किसी और पे डिपेंडेंट रहोगे ना तो आपका कभी कुछ नहीं बनना। आप खुद से घर में चीज़ें ला सकते हो। कॉलेज रोड खुला हुआ है, इस्लामाबाद की हो गई या कहीं और की भी हो, आपको तो आसपास कॉलेज मार्केट होती है। खुद से कंपोनेंट ले आओ, खुद से आर्डिनो ले आओ, उसके साथ खेलना शुरू कर दो। खुद से रेस्पबेरी पाई ले आओ, उसके ऊपर काम। आजकल एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल एंड यूट्यूब। तो आप घर में खुद इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब आपको पता है ना, देखो या तो आप कुछ कर सकते हो इस चीज़ का, मैं अब कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बाय हैंड आपने किया हुआ हो या आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी अब आपको नहीं सपोर्ट करी तो आपने खुद तो करना है ना। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप यूट्यूब से हेल्प लो, मेरे से हेल्प लो बेशक, लेकिन अपनी खुद से प्रैक्टिकली बाय हैंड जो है ना प्रैक्टिस अच्छी रखो, इक्विपमेंट के ऊपर या कंपोनेंट के ऊपर, या ठीक है। तो इस तरह रिसर्चिंग थैंक यू अच्छी सर। करो, फाइंडिंग अच्छी करो। ठीक, और समझ गया। Okay, sir. So we are about to conclude today's webinar. Is there anyone left who want to ask any question? Okay. Sir, I think we're left with no more questions. So is there anything you want to say before we conclude? बस यही कहूँगा कि जो 7th सेमेस्टर आपका होता है ना, फाइनल सेमेस्टर, उसके अंदर हम यूजुअली लगे होते हैं कि जी हमारा FYP हो जाए या हमारा GP अच्छा हो जाए। तो जो GP आपने लेना होता है ना, उस पर 7th सेमेस्टर तक आपने जो फोकस करना होता है ना, वो फोकस करें। लास्ट सेमेस्टर के ऊपर आपका पूरा फोकस अदर देन FYP, ऑब्वियसली FYP की तरफ या होना चाहिए समय के, ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए जॉब्स के ऊपर। तो आप साथ साथ जॉब्स में रहें और जॉब की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दें, या एटलीस्ट जैसे ही आप पास आउट होते हैं, जैसे ही आपका फाइनल रिजल्ट होता है, उसी वक्त आपने ये नहीं कहना कि जी मैं अभी अब ग्रेजुएट हूँ तो जी मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। जैसे ही आपने आराम करने की कोशिश की तो उसी वक्त आपकी जॉब्स आई हुई होंगी, तो आप फिर चले जाएंगे या आप बहुत लेट हो जाएंगे जॉब के लिए। तो आप जैसे ही डिग्री से फ्री होते हैं आप तैयारी करना शुरू कर दें जॉब टेस्ट की, और उसके लिए बुक्स अवेलेबल है। बस यही है, बाकी बेस्ट ऑफ लक। Thank you, sir. Thank you, sir, for such an informative session, for enlightening us on this topic, and it was a much-needed session. This concludes today's webinar. Thanks to all the attendees for showing up. We hope you have learned a lot throughout the session. Best of luck for your future endeavors, and thank you, sir. Stay blessed and safe. Allah Hafiz. My pleasure. Thank you so much. Allah Hafiz.